اصل جی میں اس طریقے سے یہ ہمارے اسکالرس یہاں یہ جو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں صدیوں سے ہندوؤں کو بیوقوف بناتے آئے ہیں. بالکل. یعنی بھارت کی، یا پھر صرف بھارت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ، یعنی اسی طرح سے گول مول باتیں کر کے وہ ایک طرف تو اسلام کو جو ہے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کچھ اور بات کرتا ہے، وہ کچھ اور بات کرتا ہے، پھر رزلٹ جب آپ دیکھیں گے رزلٹ زیرو رہتا، ایک جلیبی کی طرح جو ہے بس گول 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 بس سننے والا سوچ میں پڑ جائے یار اس نے آخر بولا کیا. صحیح ہے، ایسے ہی ہے بالکل. اب کیا کریں، اور اب یہ کوئی حال ہے یہ. جی جی. ہندوستان کا کوئی ہندو آدمی ان کو یہ پوچھتا نہیں کہ یہ کیا آخر کہا کیا آپ نے، وہ ان کو پکڑتا جی نہیں، ہاں. جیسے آپ پکڑ لیتے ہیں، ہلنے نہیں دیتے اپنے پوائنٹ سے اس کو، تو یہ لوگ چھوڑ اب دیتے، ارے جانے دو، ہاں آفینڈ ہو جائے گا. نہیں بھائی، آخر چھوڑتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ بات کو کلیئر کرو نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی جو ہے شرک کی بات نہیں کر رہے. اچھا، اس میں ایک جو ہے پکش یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ شرک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے شرک نہیں. اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں کی رائے اتنی مختلف ہے. اور کہنے کو دونوں مسلمان ہیں. دونوں مسلمان ہیں، دونوں ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں ایک رسول پر، دونوں ایک کتاب مانتے ہیں، اور پھر دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے شرک جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے سب کچھ. پھر بات گول مول باتیں ہیں. بالکل. تو چلے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ذرا وہ کامیڈی دکھا دیں، یہ دونوں کس طرح سے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، قلا بازیاں جو کھا رہے ہیں اور جی جی. پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو جلیبیاں کھلا رہے ہیں. اب لوگ جو ہے جلیبی کھانے کے عادی ہو گئے یہاں. یعنی ہمارے دیش کا ہندو جو ہے اس طرح کی جلیبیاں کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس کو عادت پڑ گئی. وہ کبھی پلٹا کے پوچھتا نہیں ہے. نہیں بھائی بات کلیئر کرو. تم اگر واقعی دیش بھک ہیں، تم اگر واقعی دیش کے وفادار ہیں، تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ بھائی تمہارے اسلام، تمہارے دین میں تو نہ تو وطن ہے، نہ وطنیت ہے، نہ وطن کی محبت کا کہیں کوئی ذکر ہے، نہ وطن کے لیے جو ہے جان دینے کا کوئی جو ہے مطلب آپ کے پاس جو ہے پورے اسلام میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہیں اس کی جو ہے گواہی ملتی ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وطن کے لیے جو ہے گواہی دے رہے ہیں، وطن کے لیے شہادت دے رہے ہیں، وطن کے لیے جو ہے آپ قربان ہو رہے ہیں. یہ الیاس شرف الدین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب بھی جو ہے وطن کے لیے فوج میں تھے. قربانی دی، فوج میں ہاں. تھے، انہوں نے جو ہے شہادت دی، اور فلاں امکان ڈھمکا سمجھ بات ہے. اور وہ بخت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دادا جو ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کے دادا ابوالکلام کے دادا، آزاد ایسا یہ کچھ ہے، جی ہم ان کی نسل سے ہیں، تو ان کی وہ بھی نسل سے فریڈم فائٹر ہے، انہوں نے دیش کے لیے جان دی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ان کا جو جھوٹا جو ہے جو بناوٹی جو ہے جو انداز ہوتا ہے، اس انداز کو لے کر یعنی سامنے والے ہندو کو یہ ہمیشہ مرعوب کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو بیوقوف بناتے ہیں، ہمیشہ جلیبیاں تمہیں بنا ڈالتے کرا کے کھلاتے ہیں. یہ ان کا ایک مستقل وتیرہ ہے، مستقل وتیرہ ہے. اور بھارت کا ہر مسلمان، بھارت کا ہر یعنی ہر عالم یہی طریقہ اپناتا ہے، یہی طریقہ. کیا کریں؟ جی تو سر. چلیے لوگوں کو جو ہے ذرا اس کا نظارہ کروا دیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے. جی سر، ابھی اسکرین آ گئی سر ابھی. جی ہاں آئی ہے بیچاری. پیار کرنا سکھاتا ہے، عورتوں کو برابری کا حق دیتا ہے یا ریگریسو ہے، اسلام میں کیا کہا گیا ہے، یہی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص مہمان ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جو جڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں. جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں فیروز احمد بخت صاحب ہیں، فارمر وائس چانسلر رہ چکے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں الیاس شفر الدین، اسلامک اسکالر ہیں. دونوں کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے. آج جو مدعا میں لے کر آئی ہوں وہ مدعا بار بار اٹھتا ہے. کئی بار ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ راشٹرگان ہو رہا تھا، مسلم لوگوں نے وہ راشٹرگان جو ہے نہیں گایا. کسی نے وندے ماترم کے نعرے نہیں لگائے کیونکہ اس نے اسلام کو غلط کیا. کسی نے بھارت ماتا کی جے نہیں بولا، کہا میرے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آج میں آپ دونوں سے سمجھنا چاہوں گی کہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے دیش کی عبادت کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہے. واہ. الیاس صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گی کہ اپنے ملک کی عبادت کی اجازت اللہ نہیں دیتا ہے. ملک کوئی بت تو نہیں ہے، چلیے بت پرستی منائی ہے،
लेकिन मुल्क की, देश की, अपनी माटी की देखिए, मैं सबसे पहले ये बता डालूं आपको कि इस्लाम मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में अमन और सलामती के लिए, मुल्क में शांति उन्नति के लिए पहले खड़े रहना मुसलमानों को बराबर हुक्म देता है अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हदीस में। और ये बात का फर्ज ऐन हो जाता है कि मुल्क में अगर फसाद हो रहा है, मासूमों का कत्ल हो रहा है, बाहर की अच्छा जरा रुक जाइए अब्दुल हमीद मुल्क साहब, पर हमला जरा रुकिए। देश के लिए खड़े होना, देश के लिए जो है ये फर्ज हो जाता है। जरा बताइए, फर्ज का मतलब है कि आपके पास कुरान की ऐसी कोई दलील है, कुरान की कोई एक आयत है? शरफुद्दीन साहब, जरा कुरान की कोई एक आयत बताइए जिसमें आपकी बात की तायीद हो रही हो। देश के लिए खड़े होना, देश के लिए कुर्बानी देने की कौन सी आयत है भी आपके पास? जरा बताइए, जरा बताइए। तो आप ये क्या कह रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? क्या कुरान ये फिर जिसे आप फर्ज कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अल्लाह ने देश के लिए कुर्बानी और देश के लिए गवाही देना, देश के लिए खड़े होना, उसके लिए अपने आप को जो है अपने आप को कुर्बान करने की बात कुरान में कहाँ आई है, कहाँ है, कौन सी आयत है? पेश कीजिए, कौन सी आयत है भाई? अगर नहीं तो आप ये झूठ क्यों कह रहे हो, ये झूठ क्यों बोल रहे हो दुनिया को? ये झूठा प्रचार आखिर क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो? ये मेरा सवाल अहले है। चॉइस है, और ये जो हजरत है बाजू वाले, वो मैक्स प्रो अहले चॉइस है वो। हाँ देखें, अब ये दोनों का जो है जो अब देखते जाइए इन दोनों की कलाबाजियां, करके देखते मासूमों को जाएं मार जी। रही है, तो दिफा के लिए, डिफेंस के लिए मुसलमान सबसे पहले खड़े हो जाएं। एक इंडियन कहाँ? आर्मी नायक का बेटा होने के नाते, जिसके वालिद ने 71 की जंग में खून पसीना बहाया, मेरे वालिद साहब खून मोहम्मद पसीना? शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं अच्छा ये कहता हूँ कि आज भी मुल्क के ऊपर बात आएगी, चाइना रहो कोई रहो, अच्छा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहा तो जरा रुकिए, जरा रुकिए, जरा अच्छा, इन्होंने चाइना का नाम क्यों लिया भाई? आपने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा शरफुद्दीन साहब, मुझे ये बताइए कि कुरान के मुताबिक, या जिसे आप सुन्नह कहते हैं, उसके मुताबिक एक मुसलमान जो कि अमेरिका में रहता है, और एक मुसलमान जो कि रशिया में रहता है, और एक मुसलमान जो कि पाकिस्तान में रहता है, और एक मुसलमान जो कि भारत में रहता है, मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान इस बारे में क्लियर कट बात कर रहा है कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि दुनिया के जितने मोमिन हैं सारे के सारे आपस में क्या हैं? भाई हैं। भाई मोमिन तमाम के तमाम आपस में भाई हैं। अच्छा अच्छा, एक पाकिस्तानी मुसलमान एक भारतीय मुसलमान का क्या है? भाई है अकॉर्डिंग टू कुरान। लेकिन एक भारतीय हिंदू एक भारतीय मुसलमान का भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, अकॉर्डिंग टू कुरान। शरफुद्दीन साहब, आपको इतनी मोटी बात का भी पता नहीं है? हाँ, इतनी बड़ी यानी इतनी बुनियादी बात का भी आपको पता नहीं है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई है, लेकिन एक हिंदुस्तानी हिंदू एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एग्जैक्ट, मैं यही तो ये पॉइंट जो है मैं आप लोगों को, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि ये लोग, इनका काम ही है झूठ का जो है इस्तेमाल करना, झूठ बोलना और झूठ का प्रचार करना, और सामने वालों की आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना। ये इतना झूठ बोलते हैं जी। आगे चलिए भाई। लगाने के लिए मुसलमान पहले की तरह तैयार है। अंग्रेजों से भी भिड़ गए थे, इनसे भी भिड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस्लाम का एक वाज़ेह मौक़ूफ़ है कुरान से या हदीस की रोशनी में कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वाह वाह, माँ बाप अल्लाह हो, ऊपर रहता। मुल्क हो, अपने उस्ताद अच्छा हो, टीचर हो, सबका एहतराम रहेगा, इज्जत रहेगी, सबका आदर रहेगा, लेकिन इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहेगी, जो अकेला रब है, और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत भी नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। तो अरे मुल्क इताअत से तो अल्लाह की भी मोहब्बत, करते हैं ना। मुल्क की इज्जत, मुल्क का एहतराम। अरे इताअत तो अल्लाह की भी करते हैं। इताअत के मामले में अल्लाह और रसूल दोनों इक्वल हैं।
قرآن کے مطابق اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے نا؟ تو اطاعت تو دونوں کی ایکول ہوئی. اطیع اللہ اطیع اطاعت کے رسول. معاملے، جی ہاں، اطاعت کے معاملے میں دونوں ایکول ہیں. بلکہ قرآن یہ تک کہہ رہا ہے کہ جو ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ گویا کہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر گیا. یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بھی اوپر ہے. گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے. اور پھر جو ہے آپ ہی کا تو یہ عقیدہ ہے نا حضرت کہ اگر جو ایک شخص اللہ کو برا کہتا ہے تو اس کو آپ کی جورسپروڈنس، آپ کے فقہا یہ جو ہے اس کے لیے یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کو برا کہے کہ تو اس کے بعد وہ یستتاب ولا یقتل، یستتاب ولا یقتل کے الفاظ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ توبہ کر لے. 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے. اگر وہ ان 3 دن کے دوران وہ کہے کہ ہاں بھائی میں توبہ کرتا ہوں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کو برا کہا، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے 3 دن کے بیچ میں تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یستتاب ولا یقتل، اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب آتی ہے باری نبی کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی باری میں جو ہے کیا کہا جاتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جس کسی نے نبی کو برا کہا، جس کسی نے نبی کو برا کہا، یقتل ولا یستتاب، تو اس کو فوری قتل کر دیا جائے گا. اس کو توبہ کرنے کی مہلت، اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں عبدالحمید صاحب؟ ان کا درجہ بڑا ہے ان سے. ہاں بھائی دیکھیں، نبی کا درجہ اللہ کے درجے سے بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. یعنی جس کسی نے نبی کو برا کہا تو یقتل ولا یستتاب، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو فوری قتل کر دیا جائے گا. اس معاملے میں یہ جو ہے مسلمان شعراء نے یہ تک کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باشد، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. اللہ کے معاملے میں تو جو کچھ کہہ دے بھی چل جائے گا، سب چلے گا. اس کو تو کہہ دو، تڑاک کہہ دو، تو جو ہے اس کو جو ہے برا کہہ دو، روٹ بھلا جاؤ، کہہ ناراض دو، ہو جاؤ اس سے. روٹ جاؤ، ناراض ہو جاؤ، اس کو ایسے تیسے جیسے جو مرضی بولو. اے اللہ تو کیسا ہے یہ بول دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے آگے پیچھے کوئی اور لفظ کا اضافہ نہ کرو، چل جائے گا. لیکن جہاں محمد کی بات آ گئی وہاں ہوشیار رہنا ہے آپ کو. وہاں محمد کہتے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہی کہنا ہے، کہنا ہے. یہاں اس معاملے میں ہوشیار رہنا ہے. اگر کسی نے کوئی بھی ایک لفظ ادھر سے ادھر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صرف محمد کہہ دیا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا بات ہے بھائی، اس کی نیت کچھ صحیح نہیں لگ رہی. یہاں جو ہے یہ ہمارے نبی کی کچھ گستاخی کرنے جا رہا ہے. یہ شخص سچ صرف والا محمد جی، کہہ رہا ہے. جی جناب. یہ اس طرح کی دادا گیری کرتے کرتے یہ ملوں کو جو عادت پڑ گئی، تو آپ نے صرف ملا مولوی کہا تو وہ بھڑک گیا ہو، ملا کہہ دیا، بولے انہوں نے ملا کہہ دیا. اللہ کہہ دیا. مجھے تو جب ہی آگ لگ گئی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ آپ نے اسٹریم کیے تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا. وہ ہند میں نہیں، اب اگر اصل میں ان کی عادت جو ہے، ان کی غنڈہ گردی، ان کی دادا گیری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے جو کچھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے عقیدوں کو وہ دنیا سے منوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو دنیا مانے، لیکن یہ دنیا کی بات کو نہیں مانیں گے. سنیں گے آپ بھی سمجھ نہیں. رہے ہیں نا؟ سننے بھی نہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات، سامنے والے کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے. اب یہی تو ہے نا. ارے بھائی نیشنل اینتھم کو لے کر بھائی آپ کو ایسی کون سی مرچی لگ جاتی ہے، لیکن ان کا دین آگے ہے، ان کے عقیدے آگے ہیں، ان کی سوچ آگے ہے. اور یہ سوچ، ان کا عقیدہ، ان کی دنیا، ان کے دین کو دنیا ماننا ہے. نہیں مانتے ہیں تو یہ دنیا کو آگ لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے. اب یہ 2 کوڑی کے ساری دنیا مولانا ان یہ کے سامنے شرک کی جھکنا. تعریف دے رہے ہیں. جی ہاں، اب بتائیے ان کو کیا پتا ہے بھائی؟ نہ قرآن کا پتا ہے، نہ جو ہے اور نہ سنت کا پتا ہے. لیکن اب یہ آ گئے جو ہے لمبی داڑھی لے کے حضرت. کیا کہیں، یہ تو حال ہے ان کا. جی آگے چلیے.
मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान इंशाल्लाह हक पर रहते हुए जान लगाने तैयार है। इबादत सिर्फ अल्लाह की रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, मुल्क से प्यार है तो राष्ट्रगान गाने में क्या गुरेज है, या कुछ लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा के लिए ऐसा करते हैं इलियास साहब? देखिए, राष्ट्रगान के अंदर अगर हमने ये देखा कि तमाम अल्फाज में एक भी लफ्ज अल्लाह के साथ शिर्क का नहीं है, अल्लाह के साथ किसी और को आप मेरे तकदीर के बनाने वाले हैं, आप मेरे डेस्टिनी के बनाने वाले हैं, आप मेरे को खाना पानी देने वाले हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी शिर्क नहीं है, तो राष्ट्रगान बराबर गा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कहीं भी अल्लाह के साथ पार्टनर बनाने की बात आ जाए किसी को भी, तो सूरह मायदा 5वां सूरा नंबर 72 कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ करने तैयार है, उसके साथ पार्टनर अगर किसी को बना ले तो अल्लाह माफ करने तैयार तो नहीं। इलियास साहब राष्ट्रगान गाते हैं या नहीं? सच वाला जी, मेरा सवाल है यहाँ आपसे। जी जी, ये अल्लाह तो एक है, उसी ने जी। सारी कायनात बनाई, उस जी। जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई नहीं है उसके जैसा, कोई नहीं है। जी हाँ, जी वो वाहिद है। जी। तो अगर मैं चाहूं तो भी क्या मैं किसी को उसका पार्टनर बनाने का मजाज हूं? देखें अब इनका अकीदा कितना जो है फुसफुसा है, कितना जो है दोगला है। अब वो यही तो कहते हैं ना भाई, एक तरफ तो आपका दावा ये है कि आपका जो है जो अरबी अल्लाह है, जिस अल्लाह को अरबों ने तराशा है, घड़ा है, आपका अल्लाह दावा ये है कि ये पूरी कायनात का बनाने वाला है। अब आप अंदाजा लगाएं कायनात का क्या मतलब है, किसे कहते हैं कायनात? हाँ, एक तरफ तो आप इस बात को सोचिए कि कायनात क्या है और उसका बनाने वाला जो भी है, ये इनके अकीदे के मुताबिक, तो एक एक जगह जो है अगर कोई शख्स जो है सिर्फ भारत भाग्य विधाता कह दे तो इनकी तन बदन में जो है आग लग जाती है। पार्टनरशिप अच्छा हो जाएंगी फिर उसकी। अच्छा, ये एकदम जो है ऐसा हो जाएगा कि एक अल्लाह है और यहाँ पर जो है एक शख्स है जो भारत भाग्य विधाता कहते ही वो अल्लाह के इक्वल हो गया। इक्वल होगा। कैसे भाई? मगर अकीदा है, ये मनगढ़ंत जो है अकीदा जो अरबों ने घड़ा है, ये दुनिया पर भी जो है इसको जो है थोपना चाहते हैं। ये इनकी अपनी सोच वो दुनिया पर जो है लागू करना चाहते हैं। नहीं, हम जो सोचते हैं, हमारा जो अकीदा है वही सही, यही तो है ना, यही अंदाज है इनका। लेकिन ये अकीदा भी कितना बोधा है कि अल्लाह ताला अगर एक है तो आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक है, उसके जैसा भी कोई नहीं हो सकता, उसका किसी का कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। आप इतने नहीं भाई, ऑफेंड ये हो जा बात रहे हैं। यानी मैं इसको समझाने के लिए, अगरचे कि ये मिसाल बहुत छोटी सी है, आप सोचिए कि एक हाथी जा रहा है, बहुत बड़ा मुतूद जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा जो है हाथी है। अच्छा, उस हाथी के सामने से जो है उसके बराबर से एक चींटी जा रही है। चींटी ये कह रही है कि जो है क्या है, तू और मैं बराबर ही तो हैं, क्या फर्क है तुझ में और मुझ में? तो अब हाथी को आ गया गुस्सा, अच्छा पकड़ो जी इस चींटी को। हालांकि ये एग्जाम्पल मैं वो यानी असल में सही एग्जाम्पल नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात को, ये बात नहीं, एक उसमें तरफ। ये भी एग्जांपल है सच वाला जी कि चूंटी हाथी को पूछ रही वो तेरा शर्ट उतार, तूने मेरी बनियान पहना के अंदर, वो देखने हाँ, का है मेरे को। मुझे देखना है, मेरी बनियान जो है चोरी हो गई, मुझे जो है मुझे तुझ पर शक है, तूने मेरी बनियान उतार कर जो है तू पहन ली, तूने जो है मेरी बनियान पहन ली। अब चूंटी का जो है ये इसरार है और ये डिमांड है कि नहीं, तू अपने कपड़े उतार, मुझे देखना है कि जो है मेरी बनियान चोरी हो गई, तो हो ना हो आज तुम ही ने जो है मेरी बनियान चुराई है। इस तरह की फजूल बातें हैं। ये इस्लामी अकीदे इसी तरह के हैं, बोदे बोदे बिल्कुल जो है बचकाना किस्म के, बचकाना किस्म के अकीदे हैं। इतने जो है बोदे हैं, इतने जो है गैर मंतिकी हैं, मगर अब क्या करें, अकीदा है। अरबों ने घड़ा ये अकीदे, इस तरह के अकीदों को लोगों पर थोपा। अब लोग तो हैं ही अरबों के जहनी गुलाम। इनकी जहनी गुलामी जो है कभी भी इन अकीदों पर यानी एक मंतकी अंदाज से, एक जो है तनकीदी तौर पर इसका जायजा लेने की इनको इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये गुलाम है। ये असल में अरबों के जहनी गुलाम हैं। अरबों ने जिन जिन अकीदों को घड़ा है, ये इन लोगों ने उन अकीदों को एज इट इज ले लिया, वहां पर ये अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं सोचते। जी आगे चलिए। और उसकी तारीफ करना है
तो जब से मुझे थोड़ा अच्छा, सा अच्छा, आपत्ति होने लगी। आपत्ति होने और लगी, जब से अच्छा। पता चला कि रब के अलावा किसी और को भाग्य का विधाता बनाया जा रहा, तब से आपत्ति होती। मुल्क में अगर अभी बाढ़ आ जाए, मुल्क में भुखमरी छा जाए, मुल्क के अंदर अगर कुछ भी अनहोनी घटित हो थोड़ा आगे जाए, हो गया तो के मुल्क ही हमारा नहीं भाग्य विधाता ठीक है वो होता है। सही जैसे सही जैसे मुल्क तरक्की करता है, हम तरक्की करते हैं। बहरहाल आपको मुल्क आपका भाग्य विधाता नजर नहीं आता है हमारे साथ। ठीक है, ये आपका व्यू था, मैंने तसल्ली से सुना। फिरोज अहमद क्या बख्श साहब, जहरीला है। आप अच्छा भी अच्छा इस्लाम जरा के ये जानकार हैं, देखिए जो है स्कॉलर हैं। आप, हाँ जी अब्दुल हमीद साहब, यानी मुसलमान के लिए भारत जो है उनका भाग्य विधाता नहीं है, हालांकि सारे भाग्य इनके इसी देश से जुड़े हैं, इनकी सारी पहचान, इनकी शनाख्त, यानी यूं समझिए कि भारत ने मुसलमानों को क्या नहीं दिया, मुझे बताएं क्या नहीं दिया। और ये बताइए कि जिस अरबी अल्लाह को ये मानते हैं, इनके इस अरबी अल्लाह ने भारतीय मुसलमानों को क्या दिया। मेरा एक बिल्कुल जो है, अगरचे कि ये सवाल जो है वो अगर वो समझते हैं तो मेरे सवाल को समझते हुए जवाब दें। भारतीय मुसलमानों को अरबी अल्लाह ने आखिर क्या दिया, और भारतीय मुसलमानों को इस भारत ने क्या नहीं दिया। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या नहीं दिया। सब कुछ दिया हाँ, इनको, जो दुनिया के और कहीं किसी मुल्क में मुसलमान को नहीं मिलता, वो यहाँ मिलता है। यहाँ सब कुछ इस देश ने इनको दिया है, और फिर भी ये अरबों के तराशे हुए जो है, उनके अरबों के मन घड़त खुदा, जिसको वो जो है अल्लाह कहते हैं, उस खुदा के लिए जो है इस भारत को त्यागने के लिए तैयार हैं। देखें तो अब ये भाई वफादारी आकर है क्या। आपकी वफादारी तो अरबों से जुड़ी है, आपकी सारी जो है मोहब्बतें, आपकी सारी जो है वफादारियां अरबों के तराशे हुए खुदा से, जिसका नाम अल्लाह कहा गया है, उससे उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अरे आप भारत के वफादार आखिर कैसे हो सकते हो भाई, कैसे हो सकते हो, किस बुनियाद पर आप ये कहते हो कि आप भारत के वफादार हैं। आपकी सारी वफादारियां अरबों के तराशे हुए अल्लाह से जुड़ी हुई हैं। आप भारत के वफादार हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते जी। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस्लाम मुल्क से मोहब्बत करने की इजाजत देता है? क्या इस्लाम, क्योंकि इस्लाम तो इश्क कहता है सिर्फ अल्लाह से हो सकता है, तो क्या इस्लाम इबादत करने की इजाजत देता है मुल्क की? क्योंकि मुल्क कोई बुत नहीं है, मुल्क एक जज्बा है, मुल्क हमारा देश है। जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। और इस्लाम के ताल्लुक से मैं यही कहूँगा कि एक आयत है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अच्छा या जरा हुब्बुल सुनिए, वतनी निस्फुल। अच्छा जरा सुनिए। आयत बोल दिया उसने। अरे अच्छा देखें, ये जो है वाइस मौलाना चांसलर साहब है आजाद, ये। अच्छा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आप ज़रा सोचिए कि इनका ओहदा, इनका मकाम, इनका रुतबा, और ये हजरत अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, ये हजरत अपने आप को स्कॉलर भी कहते हैं, ये हजरत अपने आप को इस्लाम के जानकार भी जो है कहते हैं। इसके बावजूद इनके पास इतनी रत्ती बराबर जो है इस्लाम की जो है कोई भी जो है रत्ती बराबर जो है इनके पास इल्म नहीं है। ये हुब्बुल वतन मिनल ईमान को कुरान की आयत जता रहे हैं। अब आप सोचिए, अब मैं क्या कहूं यार, क्या कहूं। ऐसे लोग टीवी चैनल्स पर आकर इस्लाम के बारे में बता रहे हैं लोगों को। सोचिए, हुब्बुल वतन मिनल ईमान को ये कुरान की आयत जता रहे हैं, जबकि ये कुरान की आयत तो दरकिनार, कोई सही हदीस भी नहीं है मेरे भाई। ये सिर्फ ये मनगढ़ंत बात है, ये मौजू है, ये जो है मनगढ़ंत जो है, मतलब ये अल्फाज हैं। इन लफ्ज़ों का न तो कुरान से कोई ताल्लुक है, और न इस्लाम की मबादियात से ताल्लुक है, और न सही हदीसों से ताल्लुक है किसी चीज। ये बात हुब्बुल वतन मिनल ईमान, असल में ये बिल्कुल वैसी ही मनगढ़ंत बात है जिस तरह की बात यानी मुसलमानों के मुंह बोले नबी के बारे में कही जाती है कि वो एक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, वो जैसी मनगढ़ंत बात है। ये बात भी, सादिक अल ये अमीन थे। अल्फाज भी बिल्कुल बिल्कुल ये सादिक अल अमीन थे, कि जो है मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कुफ्फार मक्का अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे। ये भी इसी तरह से मनगढ़ंत बात है, ये भी उसी अंदाज की जो है एक मनगढ़ंत बात है। इनके पास इस तरह की मनगढ़ंत बातों के अलावा
اسلام کو جو ہے سچا ثابت کرنے، ان کے منہ بولے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ یعنی ہندوستان کو مولانا اپنا آزاد وطن، کے جی، وانشج ہے، مولانا آزاد جیسی یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ان کی سینٹرل علمیت کا یونیورسٹی کے جو ہے وائس یہ، چانسلر، جی، اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اور اردو ان کا یہ حال یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور ان کی علمیت کا یہ حال ہے۔ ان کو اسلام کی رتی برابر جو ہے جانکاری نہیں ہے، اور پھر یہ ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر نیشنل نیوز چینل پر جو ہے اس طرح کی ایسی جو ہے بونگیاں مارتے ہیں۔ حب الوطن من الایمان، قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں یہ حضرت۔ اب بتائیے میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں؟ اور ان کو بولنے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، کوئی نہیں ہاں، پوچھ سکتا ان کو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ان کی بات کی شروعات ہی اس طرح کی اتنی بڑی بونگی سے ہو رہی ہے کہ حب الوطن من الایمان کو یہ قرآن کی آیت جتا رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ دیکھیں کتنے دھڑلے کے ساتھ، کتنا اوپننس جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر جو ہے ذری سی بھی شرمندگی نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس علم ہے نہ شرمندگی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے نیوز چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی ایسی بڑی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں؟ یعنی اسلام کے آیت جسے اسلام کہا گیا ہے اس کے دفاع، اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں، ایسے لوگ اسلام کا ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، کیا کہوں، کس سے کیا بولوں؟ دونوں اسلامک اسکالر ہے، یہ دونوں بھی اسلامک اسلامک چنتک میں ہے، آپ کو جو ہے، یہ ہاں اسکالر ہے۔ جی، آیت ہے حب الوطنی من الایمان یا حب الوطنی نصف الایمان۔ مسلمان اچھا، کا آدھا ایمان ہی یہی ہے واہ واہ، کہ جس کیا بات ہے، وطن میں وہ رہتا قربان، ہے، جس مٹی میں وہ رہتا ہے، اس ہاں، مٹی کے لیے وہ پیٹریوٹک اس کو ہونا چاہیے، اور اس اچھا کے ساتھ وفاداری نبھانی اچھا، چاہیے، وفاداری اور نبھانی ہے، اس کے پیٹریاٹک لیے وہ ہونا ہے، نیشنلسٹ ہونا چاہیے۔ واہ، نیشنلسٹ بھی ہونا، واہ کیا بات ہے بھی، قربان آپ کی ایک ایک لفظ پر جو ہے میں تو میرا جی چاہ رہا ہے قربان ہو جاؤں۔ ہاں، کیا بلہائیاں کمال، بلہائیاں جو ہے صفائی جی، سے جھوٹ بول رہے، کتنے میں نے کانفیڈنس سے۔ اس کے لیے پیٹریاٹک ہونا ہے، اس کے لیے جو ہے نیشنلزم کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کو قربانی دینی ہے، اس کو وفاداری نبھانی ہے اس مٹی کے لیے، اس وطن کے لیے۔ ارے بھائی کیا ہے یار، جو ہے کیا بولوں یار، ایسے لوگ ٹی وی چینل پر آ کر، نیشنل ٹی وی چینل پر آ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس سے 1% بھی کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کا قرآن سے یا اسلام سے سنگل پرسنٹ بھی جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، سنگل پرسنٹ، سنگل، ان سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سے تو فون کر کے پوچھنا چاہ رہا میں کہ یہ قرآن کی آیت کون سی نمبر کی ہے، بتائیے حضرت ذرا، یہ ہاں بھئی، کہاں لکھا ہے۔ یعنی کون سے چیپٹر کی کون سی ورڈ سے ذرا بتائیے حضرت، ہاں؟ اور اپنے آپ کو آپ اہل قرآن کہتے ہیں، اسلام کا جانکار کہتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کی علمیت کا جو ہے یہ فقدان، یہ بحران ہے، بحران، علمی بحران کا شکار ہیں آپ، اور آپ ٹی وی چینل پر آ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں۔ حب الوطن جزء من الایمان، حب الوطن نصف من الایمان کہتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب میں کیا بولوں، کیسے بولوں، کس کو بولوں؟ اب ایسی لوگوں کی باتیں ہمارے ہندو سنتے ہیں، اور ہندو تو ویسے ہی جو ہے عادی ہیں، بے وہ بولتے وقوف بھائی اتنا بننے کے بڑا عادی آدمی ہے، ہیں۔ ہاں، وائس چانسلر بول رہا ہے دیکھیں بھائی۔ اس دیش کا ہندو ایسی لوگوں کی چپنی چپڑی باتوں میں جو ہے آ کر، یعنی یہ ان کی باتوں کا جو ہے، ہاں بھائی ابھی اتنے بڑی شخصیت ہے بھائی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ارے بھائی جب اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، تو انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہوگا۔ ہاں واقعی اسلام نیشنلزم کی بات کرتا ہے، ہاں واقعی اسلام جو ہے وفاداری کی بات کرتا ہے، ہاں واقعی اسلام جو ہے پیٹریاٹزم کی بات کرتا ہے، اسلام میں جو ہے اپنے دیش سے وفاداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ارے یار کیا بتاؤں میں، کیسی بس باتیں ایسے ہی کر رہے ہیں ذرا امپریشن لینا سوچیے، ان کی بات سن کر۔ کیا بتاؤں میں، کیا بولوں آخر، کیسے بولوں؟ جی جناب چلیے آگے کیا کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی ہمارے جو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی الیاس شرف الدین صاحب، انہوں نے، مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ
कि उनके वालिद एक लांस नायक थे आर्मी में, मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये भी अच्छी बात है कि उनके वालिद की जो कुर्बानी है उसका भी खून जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसमें शामिल है। तो इस अच्छा जरा रुक सचवाला जी, जाइए भाई। हाँ वो दो जेबराज रहते ना, जो एक दूसरे की पीठ खुजाते, तो वो जी 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 जी, एक वो मैं ये गधे की ये जगह जेबरा जेबराज इसकी बोल पीठ दिया खुजा रहा भाई, है। वाइस जी, चांसलर है बोलकर। ये इसकी पीठ खुजा रहा है, वो इसकी पीठ खुजा रहा है। एक टीनगर है, एक कलाईगर है। ये इसकी गवाही ये दे रहा है, ये टीनगर की गवाही कलाईगर दे रहा है इसमें। अरे यार भाई, आपके पास कौन सी दलील है भाई? कुरान की कोई एक आयत या कोई सही हदीस आप मुझे बताएं जो देश के लिए खून बहाने की बात करती हो। कोई एक हदीस बताइए, एक हदीस। या किसी जो है कोई ऐसे आलिम दीन की बात बताएं जिन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित किया हो कि जो है भारत के लिए खून बहाना चाहिए। कोई एक का नाम ले। अरे भाई, हमने तो आपको ये खुद अबुल कलाम आज़ाद हो या मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी हैं या डॉक्टर इसरार अहमद हैं, और तो और जिस शख्स को आप शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने तो आपको पता है कि कल ही मैंने कितनी बातें जो है उनकी कोट की हैं। वो तो वतन को एक यानी उन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। इकबाल तो ये तक कहता है, इतनी क्लैरिटी के साथ बात करता है कि इस्लाम की इसी वतनियत को लेकर इस्लाम की जड़ कट जाती है। वतन का नाम लेने वाला गोया के इस्लामियत की जड़ काट रहा है। शायर मशरिक के अल्फाज हैं जिन्हें आप अल्लामा इकबाल कहते हैं। उनके अनुसार ये कहना कि जो है वतन वतन कहने वाला दरअसल वो इस्लाम की जड़ को काट रहा है। इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट है, वतन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कोई वतन की बात करता है वो अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। समझ आई आपको हजरत? इतना भी आपको पता नहीं है, और आप आके बैठ गए नेशनल टीवी चैनल पर और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसे लगा सचवाला जी, ये डर गए ये शराफुद्दीन से कि ये बदतमीज है, अटैक करेगा, अपनी बेइज्जती कर देगा, तो पहले इसकी हाँ, पीठ खुजा लो बोल के वो उसको पीठ खुजा रहे हैं। कहा। यानी इनकी पीठ ये खुजा रहे हैं, उनकी पीठ ये खुजा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। वो बेचारी त्यागी जो है वो परेशान है। जी, क्या करें? ये सारा हमारा ऐसे ही पूरा मिली जुली हमारी जो पूरा जो इस्लाम का सिलसिला है, जो भी फौजी हैं वो हिंदुस्तान को मानते हैं। अब ये दो एक चीजें मैं और सुन रहा था। देखिए ऐसा है कि पूरे फौजी हिंदुस्तान को मानते हैं। अब ये अगर फौज में है तो वहां राष्ट्रगान नहीं गाया होगा इसने, इनके बाप ने राष्ट्रगान गाया होगा ना फौज में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या कमाल, झूठे साले। अब इलियास शरफुद्दीन साहब भारत भाग्य विधाता वगैरह की थोड़ा सा उसको खोल के बता रहे थे। देखिए ऐसा बिल्कुल ठीक है, हमारा भी भारत भाग्य विधाता को खोलकर बता। यानी ये हजरत जो है, यानी मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं। उनको बात करने का भी सलीका नहीं है, बात करने क्या का तक कमाल। सलीका नहीं है। देखें, और फिर ये बैठे हैं वाइस चांसलर की जो है गद्दी पर। क्या करें यार, कैसे कैसे लोग हैं जी। आगे चलिए। ये इस्लामिक चिंतक है, ये इस्लामिक स्कॉलर है। भाग्य विधाता जी वगैरह की थोड़ा सा उसको खोल के बता रहे थे। देखिए ऐसा बिल्कुल ठीक है, हमारा विधाता जो है अल्लाह है और शिर्क कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शामिल करना कि अभी, लेकिन शिर्क कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करता है। जो जो क्या उनके क्या दिल बात में आ कर रहे रहे वो हैं आप? अल्फाज बोल रहे हो। यानी मतलब ये है कि और सुनने वाले मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और हिंदू लोग इन लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अरे और यार वो इतना उर्दू बड़ा नाम सुनने है में यार। अच्छी अच्छी लगती है हाँ? अल्फाज उनके। अरे इस देश के हिंदू जो है शुरू से बेवकूफ बनते आए हैं, शुरू से बेवकूफ उन्हें बनाया गया है, और ये बेवकूफ बनते रहे हैं शुरू से। क्या करें? क्योंकि ये बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, सामने वाले बेवकूफ बनाने के लिए तैयार हैं। और क्या, ये आंखें खोलना ही नहीं चाहते ना। ये इस्लाम को ना तो समझना चाहते हैं, ना जो है पढ़ना चाहते हैं, ना जो है अपनी आंखें खोलना चाहते हैं। तो जाहिर बात है ऐसे लोग आएंगे, ऐसे यानी इस तरह की बातें करेंगे, और आपको जो है वो आपको चूना लगाएंगे।
कत्थे के साथ चूना लगाकर आपको पान खिलाएंगे और आप पान खाने के आदी हैं, क्या करें जी। नहीं है, कोई नहीं कर सकता, सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शामिल करना कि अभी। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा, अरे अरे रुक गए, वो रुक गया वो जी तो क्या कहने उसको जा रहे समझ हैं में आ गया, मैं फेंकते फेंकते डेंजर जोन में चले गया बोल के समझ में आ गया हाँ उसके। जी, फौरी जो है वहां से जो है क्या करें, देखिए देखिए पलटी देखो, फिर पलटी से खा रहे हैं सब। 10 अच्छा सेकंड पीछे देखिए गया। ऐसा बिल्कुल ठीक है, हमारा विधाता जो है अल्लाह है और शिर्क कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता, सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ शामिल करना कि अभी। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा, यानी अल्लाह के साथ शामिल करना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। फिर लेकिन आ गया यहाँ पर, अब फिर क्या कहने वाले हैं भाई लेकिन कहकर? अगर ये कहा गया भारत भाग्य जी विधाता, अल्लाह जी सब कुछ है, लेकिन भारत को अल्लाह ने एजेंसी बनाया है कि खुदा न खास्ता कोई अरे बाप, एजेंसी, आहा डीलरशिप आहा मिल गई इधर। एजेंसी बनाया है, यानी भारत को अल्लाह ने एजेंसी बनाया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा शिर्क कर सकते हैं जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है नन्ना मुन्ना शिर्क कर सकते हैं प्रॉब्लम होती जी। है, क्या कोई कहना चाह रहे हैं किसी वाइस तरह का चांसलर भी साहब? कि मसले मसाइल होता है कि खुदा न खास्ता मसले कोई मसाइल, प्रॉब्लम होती है, मसले कोई मसाइल कौन से किसी मसले तरह मसाइल का भी भाई? कि मसले मसाइल होते हैं हमारे ऊपर, मसले मुसलमानों मसाइल के ऊपर। होते ये हैं, वाह। मुसलमानों के ऊपर मसले मसाइल है इंडिया में, मुसलमानों के ऊपर जो है मसले मसाइल होते हैं। ये भाई क्या क्या उर्दू है यार इनकी। उनके वाइस जुमले चांसलर का कोई साहब, माना ही नहीं निकल रहा, वो क्या जुमला बोल रहे हो। नहीं अब आप देखें कि ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और एक सीनियर जो है सिटीजन हैं, और जाहिर बात है अपने आप को इतना बड़ा नाम है मौलाना उनका, आजाद की पड़ और पोते भी हैं। पड़पोते भी हैं। और फिर उनकी उर्दू का या फिर उनकी जो है देखें उनकी जो ताबीर है, जिन लफ्ज़ों को जो है जोड़कर वो अपनी बात जो पेश करना चाह रहे हैं कि जो है देखें कितना कितना बहरान है उनका, बहरान, इल्मी बहरान भी है और फिर जो ताबीरी बहरान भी है, और जो है जो बात बताना चाह रहे हैं पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वो बेचारी जो है पिनास त्यागी परेशान है, दोनों के बीच में परेशान है, दोनों क्या आगे बढ़ते रहिए आप। होती है, कोई किसी तरह का भी कि मसले मसाइल होते हैं हमारे ऊपर, मसले मुसलमानों के ऊपर, मसाइल, ये पूरे देश में, तो उसको बचाने वाला अच्छा देश है। मुसलमानों के ऊपर तो मसले अब दूसरी मसाइल बात होते एक हैं, और, तो उसको ये बचाने वाला मुसलमानों के देश ऊपर है, ये बात तो सही बोला उसने। जी मुसलमानों को बचाने वाला देश है देश है जी, और देश को मुसलमानों के खपाने वाले ऊपर मुसलमान है पूरे। देश को खपाने वाले मुसलमान हैं, और फिर देश से जो है हर तरह का फायदा उठाने वाले मुसलमान हैं। जो जो सहूलतें जो जो होंगी उसके सारे फायदे उठाएंगे, और फिर उसके बाद जब बकरे को काटे तरह जो है देश की जो है को भी काटेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मार के जो है कसाई मार के कैसे टुकड़े करता है ना, बड़े बड़े जो है तस्से के टुकड़े करता है, इस तरह से उसके टुकड़े करेंगे। ये टुकड़े करने वाले भी मुसलमान हैं, देश से फायदा उठाने वाले भी मुसलमान हैं, देश की हर तरह की सहूलत हासिल करने वाले भी मुसलमान हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले भी मुसलमान हैं। हाँ सारे मुसलमान हैं। फिर मुसलमानों पर के ऊपर जो है मसले मसाइल आए तो देश ही इनको बचाएगा। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है ये जी। अपनी आगे चलिए इल्मियत भाई। झाड़ने के चक्कर में कितने अज्ञानी हैं, ये इसका इजहार कर रहे हैं। अब देखें कि हमारे देश की जो है जो मेजॉरिटी है ऐसे लोगों की बातें सुनकर इन पर विश्वास भी कर लेती है। अब मैं क्या बताऊं यार, क्या बोलूं, आखिर कैसे बोलूं जी। आगे बता चलिए। दूं, हम जो मुसलमान हैं उसमें इलियास भाई भी शामिल हैं, आलिम दीन भी हैं, अकाबिर भी हैं, अमायद भी हैं, मुस्लिम लीडर भी हैं। इलियास साहब, मैं इनको सुनता हूँ, बहुत सी बातें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बातों और बहुत सी बातें गधे पनी की होती है। अच्छा आप सुनिए, ये सारी बातें ये क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है ना अब्दुल हमीद साहब? ये एक जेबरा दूसरे जेबरी की पीठ खुजा रहा है। देखिए यार जरा संभल के, यानी मैं जी, तेरी जी। पीठ खुजा रहा हूँ तो बाद में तू भी मेरी पीठ खुजाना, ताकि हम जी। दोनों अपनी अपनी पीठ खुजा लेंगे एक दूसरे की, ताकि लोग जो है उनकी आंखों में धूल झोंक कर हम यहाँ से टरक जाएंगे, हम जो लोगों मतलब यहाँ से टरक जाएंगे, सबको टरका लोग देंगे। सबको टरखा देंगे। जी। ये मिली में भगत है मेरे ख्याल से जी। मुझे इनसे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यह है कि हम एक ही अल्लाह को फॉलो करते हैं, हम एक ही इस्लाम फॉलो करते हैं, हमारा एक ही इस्लाम है, और वो अच्छा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, वो मुल्ला का अच्छा इस्लाम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा मुल्ला ये भी को अल्लाह और मुल्ला दूसरे वाले हैं जी अब्दुल हमीद साहब। अच्छा ये हाँ, भी जो है इनके पास भी वही नारा है, एक इस्लाम अल्लाह का और एक इस्लाम मुल्ला का। अच्छा ये मुल्ला का इस्लाम कौन सा है भाई? तो वो इलिया शराफुद्दीन से डर के पहले पीठ खुजाए, फिर हाँ मुल्ला का पीठ अलग है खुजाए, बोल दियो। फिर हल्लू से जो है धीरे धीरे से जो है वो मुल्ला का इस्लाम भी लेके आए, फिर कहने लगे नहीं भाई हम तो अल्लाह के इस्लाम को जो है फॉलो करते हैं, मुल्ला के इस्लाम को नहीं करते। अच्छा मुल्ला का इस्लाम कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा इस्लाम है? हाँ। अरे भाई आपका मुल्ला ही इस जमीन पर अल्लाह बना फिरता है, आपको इतना भी नहीं पता?
इतना भी नहीं पता। सही बात, जिसे मुल्ला आप ही अल्लाह अल्लाह है। समझ रहे हो, असल में वो अल्लाह ही मुल्ला, वो मुल्ला ही अल्लाह है। अल्लाह वल्लाह कोई नहीं होता, असल में मुल्ला ही आपका असल में अल्लाह है। समझ आई आपको, या इतनी भी समझ नहीं है? जी आगे चलिए। मैं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं खुद एक मुल्ला मौलाना अबुल कलाम आजाद की फैमिली से हूँ, अच्छा। लेकिन हमारा जो इस्लाम है अल्लाह से है, हमारी एक ही किताब है वो बहरहाल कुरान। आखिरी मतलब यानी जितना हो सकता पीठ खुजाओ जरा, ताकि वो जो है सामने वाला जेबरा जो है इन्हें भी जो है थोड़ी थोड़ी इनकी पीठ खुजाए, और ये पीठ खुजाने का अमल जारी है। जी वो बोला मैं मुल्ला की फैमिली से हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के इस्लाम को मानता हूँ। मैं ये अल्लाह बड़ा की इम्पोर्टेंट बात ये बोल रहा हूँ, मतलब जी, मैं मैं मौलाना आजाद की फैमिली से हूँ, लेकिन उनको नहीं मानता मैं। जी मैं जो है मैं मेरी फैमिली तो मुल्ला की है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ अल्लाह को। देखते जाओ भी लोगों फैमिली से देखो। हूँ, लेकिन जी हमारा जो इस्लाम है अल्लाह से है, हमारी एक ही किताब है वो कुरान है, वही उसूल है, और हमारे एक ही द सील ऑफ द प्रॉफिट्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये हमारा इस्लाम है। हम अपना वाह। इस्लाम किसी नेता से, किसी ओवैसी से, या किसी तौकीर रजा खान से, या किसी आजम खान से, या किसी फलाने से, या किसी बोर्ड से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं से अख्ज़ नहीं करते। हमारा अल्लाह, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और कुरान, एक ही इस्लाम है। अब इसको कुछ लोगों ने, एक छोटा सा अगर किस्सा बताऊं मैं आपको, अगर वक्त जी, है जी। थोड़ा सा, इससे क्या इलियास भाई आगे? आप भी प्लीज। सुनिए। ऐसा है कि क्या गया? सहारनपुर जी में सच्चा किस्सा है, एक जमीन के ऊपर सच्चा कुछ किस्सा। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मस्जिद ठीक है। बनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो हिंदुओं की जमीन थी, वो वहां पर मंदिर बनाना चाहते थे। अदालत में फैसला पहुंच गया, जो लोकल अदालत थी वहां की, तो जज थे, उन्होंने कहा भाई बड़ा उलझा हुआ मामला है, कोई सबसे ज्यादा सीनियर कोई ऐसा आदमी जो जिसने देखा हो, जो गवाही दे सके कि मुसलमानों की जमीन है हिंदुओं की। तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, जो सबसे बड़े आलिम दीन थे सहारनपुर के, उनको बुलाया गया। जज ने पूछा, तो मुफ्ती ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, जमीन तो ये हिंदुओं की है। उस पे फिर जज ने ये कहा, आज इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गया। अरे तो ये वाह है कि वाह, देखिए इस्लाम, क्या बात है अरे यार, बाप, क्या अरे बात है बाप, यार, क्या ओ बात है, भाई वाह साहब, वाह वाह। अरे अरे अच्छा अरे अच्छा, आप अरे अरे। देखिए कि ये नेशनल टीवी चैनल पर आकर इनके पास दलाइल तो कुछ भी नहीं है, ये जो है बचकाना किस्से सुना रहे हैं, बचकाना कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है ना, बच्चों ये की नानी बुढ़िया वाले दादी। किस्से को सुपरसीड कर दिया ये किस्से ने। हाँ, अब आप बताइए, कुछ भी यानी कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोलो, और सामने सुनने वाले हिंदू हैं बेचारे, इन लोगों की बातों पे यकीन कर लेते हैं। हिंदुओं को तो काम ही है ना अभी सामने वालों की जो है बातों पे यकीन करना। भाई ये हिंदू कभी कहाँ से तहरीक बोल तो रही है, नहीं क्या करते, ऑर्डर में हर लिखी बात हुई पे है जो ये है सारी सामने की चीजें? बात मान लेते हैं, सामने वाले की बात, ऐसी सिलसिला चल रहा है, मेजोरिटी ऐसी लोगों की है। नहीं, सचवाला जी, ये जो किस्सा कह रहे हैं, तो क्या ये रिकॉर्डेड है कहीं, जो इन्होंने कह दिया अभी बस मुंह उठाया और बोल दिया इन्होंने? हाँ भाई, नेशनल टीवी पर आकर टीवी की डिबेट में जो है इस तरह की बातें कह दें, और इसकी बेस पर इस्लाम इनका सच्चा साबित हो गया, और ये भी सच्चे हो गए, और फिर जो है कोर्ट, लोकल इन्होंने, अदालत भी बोल दिए, हाँ गवाही बोल दिए, नाम भी ले लिए एक उन्होंने, यानी मतलब कुछ भी बोलो तो कुछ भी, कुछ भी, कुछ जी भी। काम क्या का किया मकसद जाए। ही है कि सच्चाई फैलाना। और जिस हाँ, तरीके से आपने भी ये बात कही, देखिए हमारे और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि बात आई फिर थी, खुजाओ आपने इनसे देवरे की कहा, पीठ। पिनाज, इनसे आपने कहा वो गाइए आप जनगण मन नहीं, मैंने इनसे राष्ट्रगान। पूछा कि आप एक राष्ट्रगान आखिरी बात, गाते बस हैं कि 5 सेकंड, हाँ। 5 सेकंड दे दो पिनाज। जी, जी। आपने इनसे कहा जनगण मन गाइए, मैं गा सकता हूँ, गाता हूँ, मुझे उससे कोई तरद्दुद नहीं है, ठीक है। यानी कि एक मुसलमान, देखिए मैं यहाँ पर लोगों के मन में जो भ्रम है, लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है, वही दूर करना मेरी कोशिश है यहाँ पर इस शो के माध्यम से, क्योंकि मैं इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानती, आप लोगों के जरिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने शो के जरिए समझ रही हूँ। फिरोज साहब, आप कह रहे हैं आप भी एक मुसलमान हैं, इलियास साहब भी मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप भारत भाग्य विधाता जनगण मन पूरा गा सकते हैं, इलियास साहब कहते हैं कि उनका इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये कैसे? पीना सुनिए, इलियास साहब इज अ मच बेटर मुस्लिम कंपेयर टू एनी ओवैसी, और कंपेयर टू एनी जो मलेशिया में गए हुए हैं पीठ जाकिर खुजाओ नायक, इज अ जी, मच बेटर मुस्लिम, खुजाओ ठीक है। जी। देखिए, वो तो ओवैसी साहब कहते हैं मेरे गले पे छुरी रख दो, मैं भारत माता नहीं कहूंगा, भारत माता की जय नहीं कहूंगा। देखिए तरीका, और जो वो जाकिर नायक साहब है वो एरोगेंट बहुत हैं, ऐसे लोगों का गलत असर पड़ता है। नहीं तो और मैं बहुत अच्छे सोचता हूँ हैं। हमारे इलियास शरफुद्दीन साहब हैं, ये पढ़े लिखे हैं, अभी इन्होंने बहुत अच्छे बताया हैं, कि सिस्टर बहुत एमबीबीएस अच्छे है, हैं खुद इलियास भी शरफुद्दीन साइंस से साहब, ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए मैं हमें आपकी ऐसे पीठ खुजा मुसलमानों रहा हूँ को, भाई, आप मेरी पीठ खुजाना फिर जी,
چلیں چلیں اٹیک نہیں دونوں ایک کرنے دوسرے میں. کی ہاں تاکہ مجھ پر اٹیک نہ کریں. میں آپ کی پیٹھ کھجا رہا ہوں الیاس شرف الدین صاحب، تاکہ آپ بھی تھوڑی تھوڑی، میں زیادہ کھجاؤں گا، آپ میری تھوڑی سی کھجانا، ٹھیک ہے؟ ہاں کی چلیے. ضرورت ہے. اور اسلام جو ہے نہیں تو ایک منٹ، ہم ایک بار پھر سے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو فیروز احمد بخش صاحب، کیا ایک مسلمان اگر چاہے تو جن گن من گا سکتا ہے، اپنے ملک کی عبادت کر سکتا ہے، راشٹر گان گا سکتا ہے؟ آپ کا جو جانکاری اسلام کی بطور اسکالر کیا کہتی ہے؟ 101% گا سکتے ہیں. اور مجھے بڑی شکایت ہے ایک ایم پی سے، مسلم ایم پی سے، کہ جو جب جن گن من ہوتا ہے، وندے ماترم ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں نام لینا چاہ رہا ہوں، نام لوں گا ان کا، شفیق الرحمان گیا بخش صاحب. اب تو ہمیں گیا. ایسے نیتا نہیں چاہیے، ہمیں ایسے ایم پی نہیں الیاس صاحب، چاہیے. فیروز بھی تو جو ہیں اچھا. فیروز جی، وہ بھی تو ایک مسلمان ہیں، اور آپ بھی مسلمان ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راشٹرگان نہیں گا سکتے، فیروز صاحب کہتے ہیں میں تو روز گاتا ہوں. جی میں دو باتیں اس کے اندر بتانا چاہوں گا. پہلی چیز کہ ایک بات بڑی پیاری بتائی فیروز بخش صاحب نے کہ ہم ایک ہی اللہ کے ماننے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں. بالکل یہ بات کی ہے، بہت عمدہ بات ہے، اور یقیناً میں اس پر متفق ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری قرآن کے اندر حب البتی نصف الایمان والی کوئی آیت نہیں، ایک بھی 6666 آیتوں میں. اوئے ہوئے ہوئے، سچ والا جی پیٹ کھجائے بعد بھی اس نے دھو دیا ان کو پلٹا کے. دیکھتے رہو آگے آگے. اصلی ملا ہے بھائی، اصلی. جی لیکن معصوموں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور ملک کے اندر فساد اگر کوئی کر رہا یا ملک پر اٹیک کر کے معصوموں کا قتل عام کرنا چاہ رہا، تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنا سینہ آگے کر کے ملک اور ملک میں رہنے والے تمام دیش واسیوں کی حفاظت کے لیے جان لگا دینا، اس کے اوپر آپ کو کئی آیتوں سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. اچھا ذرا ایک آیت بتاؤ بھائی، ذرا رک جائیے عبدالحمید صاحب، ذرا اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کئی آیتوں سے، اچھا الیاس شرف الدین صاحب کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں حب الوطن یا پھر جو ہے وطن سے محبت کی بات کی گئی ہو، وطن سے وفاداری کے جذبے کی بات کی گئی ہو. کوئی ایک آیت بتائیے نا پلیز، میں ترس رہا ہوں بھائی. مجھے کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے. پیش کرو کوئی ایک آیت. ارے یار کیسا جھوٹ بول. دیکھیں یہ دونوں مل کے جس طرح سے جو ہے مطلب یہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کھلم کھلا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں دونوں مل کر. دونوں منافق ہے، لیکن یہ وی سی صاحب زیادہ منافق ہے، یہ تھوڑا کم ہے، یہ کھلا کھلا بول رہا ہے. اب دیکھیں بہرحال دیکھتے جائیے. اس کے اوپر آپ کو کئی آیتوں سے مسئلہ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. واہ، کئی کون سی آیتیں بھائی، کون سی آیتیں ذرا بتائیے. ذاکر نائک کا اسٹوڈنٹ ہوں، ذاکر بھائی کے سمجھانے کے انداز میں میرے سمجھانے کے انداز میں فرق ہو سکتا، لیکن وہ میرے ٹیچر ہے. تیسری بات، قرآن صحیح حدیث کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے قرآن مجید کی پہلے سورے کی 4تھی آیت، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر اور ایسی کئی آیتیں، اللہ لا الہ الا ہوا، قل هو اللہ احد، ان آیتوں سے صاف مسئلہ نکلتا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی پوجا اور عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ نہیں ہوگی. اپنے ملک کے لیے اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی جیکار کرنے میں دقت ہے. فیروز احمد بخش صاحب، اور یہیں سے شاید ایک عام آدمی کے من میں کنفیوژن بھی شروع ہوتا ہے. دیکھیے پیٹریوٹزم پہ سوال کیسے لوگ ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے اسکالرز ہیں وہ اپنے اپنے مت رکھ سکتے ہیں، اپنے ایک براڈ پرسپیکٹو میں سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی آبادی جو بہت زیادہ پڑھتی لکھتی سمجھتے نہیں ہیں، اس کے من میں آتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جان دے سکتے ہیں الیاس صاحب لیکن راشٹرگان نہیں گائیں گے. الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پتا فوج میں تھے، 71 کی جنگ لڑی، میں خود لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن راشٹرگان گانے کے لیے یہاں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں عبدالحمید صاحب. دیکھیے جی سر. کہ ایک مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، وہ بھارت جیسے دیش کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا. بھارت ایک سیکولر دیش ہے. بھارت جو ہے یہاں پر کفر اور شرک کا غلبہ ہے. کیا ہے؟ کفر اور شرک کا غلبہ ہے. تو ایسے دیش، ایسے جو ہے ملک کے لیے وہ قربانی دینا، وہ اپنی جان گنوانا، اس کے لیے جو ہے وفاداری کی بات کرنا، یہ سراسر ان اسلامک ہے، ان قرآنک ہے، ان قرآنک. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے.
پورے اسلام یعنی پورے قرآن میں اور اسلام میں یہ سیکولرزم، یہ سیکولر جو ہے بات کہیں بھی نہیں آتی. قرآن اور اسلام سیکولرزم کے خلاف ہے، اور قرآن اور اسلام شرک اور جو ہے کفر کے خلاف ہے. بھارت میں کفر اور شرک کا غلبہ ہے. ایک ایسے دیش کے لیے ایک مومن کبھی بھی وفاداری کی بات نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو وہ جھوٹا ہے یا منافق ہے. جی آگے سر کی جنگ لڑی، میں خود لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن راشٹرگان گانے کے لیے، وندے ماترم بولنے کے لیے، بھارت ماتا کی جے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا پیٹریوٹزم ہے، یہاں کہاں دقت آ رہی ہے؟ حالانکہ ہم بالکل سوال نہیں اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنے ملک کے پرتی اپنی بھکتی، دیش بھکتی ظاہر کر سکتا ہے. لیکن فیروز احمد صاحب، کیا واقعی میں بھارت ماتا کی جے بولنا، کیا واقعی میں وندے ماترم بولنا اسلام کی خلاف ہے؟ اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ایسا ہے، ابھی میں سن رہا تھا الیاس صاحب کو، تو یہ بات ٹھیک ہے، ہم سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ہو واز دی سیل آف آل پروفٹس، ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے. یہ ہمارا اصول ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیے کیا ہے، کس طریقے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، کس طریقے سے ہم، جیسے وندے ماترم میں آپ نے کہا الیاس صاحب کہ میں بھارت ماتا کے آگے سجدہ کرتا ہوں. سجدہ نہیں ہے میرے خیال سے. اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ بھارت ماتا ہمارا وطن ہے، ماتا کہہ لیجئے، وطن کہہ لیجئے، ہندوستان کہہ لیجئے، انڈیا کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، جہاں یہاں ہم رہتے ہیں، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، تو کچھ بھی کہہ لیجئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سجدہ نہیں، ہم سر خم کرتے ہیں. سر خم مطلب تو ہم جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اوبیسانس، سر جھکا کے سلام کرنا. یہ نہیں کہ سجدہ کرنا. اب کچھ لوگ کٹر لوگ، میں آپ کو کٹر نہیں کہہ رہا، آپ بہت سلجھے ہوئے ہیں، بہت بیلنس ہے الیاس صاحب. کئی چیزوں میں میرا آپ دانت نکال کے، وہ چھوڑتا نہیں ہوں، کٹنے بعد آئیں گے، اس لیے جو ہے پیٹ کھجاتے جاؤ. They are scratching their backs each other. وندے ماترم بھی جو ہے ہمارا اسلام، اللہ کا شکر ہے، میں بھی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اگر میری نماز یہاں مس ہوگی 4-5 بجے کی، میں اس کو جا کے قضا پڑھوں گا. آپ بھی 5 وقت نمازی ہیں، 30 روزے میں بھی رکھتا ہوں. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا اپنی، سارے ٹینٹس اسلام کے فالو کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اسلام ایک مسلمان ہے، کھلا ہوا مذہب ہے. کھلا ہوا ہے. اچھا کھلا ہوا مذہب کس کو بولتے بھائی؟ اچھا کیا مطلب اسلام ایک کھلا ہوا مذہب کا کیا مطلب؟ یہ دیکھیں ان کی اردو دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں. اسلام ایک کھلا ہوا مذہب ہے. اب میں کیا بتاؤں یار. اب یہ یعنی ان کا اندازہ مولانا بھی آزاد اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور ان کا انداز بیان اور جو ہے ان کی طرز گفتگو دیکھیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک کھلا ہوا مذہب ہے. پتہ نہیں ان کی دھوتی کھلی ہوئی ہے مذہب کی، یا لنگی کھلی ہوئی ہے. کیا کھلی ہوئی کیا ہے، کیا کھلا ہوا ہے بھی اس کا؟ اسلام ایک کھلا ہوا مذہب ہے. جی آگے چلیے بھائی. سچ والا جی، آپ جو کہتے ہیں کہ پھل جو ہے تو اس کے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ پھل سے ان کے مولانا آزاد بھی پہچاننے میں آ رہے ابھی. ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے. کمال. یہی تو ہے. لوگوں نے اس کو کلوز بنا دیا ہے. ہم نے اس کو ڈھکن میں بند کر کے اس کو ڈھکن کس دیا ہے. اس کو باہر نکالنا ہوگا. اور اسلام بہت وسیع ہے اور بہت. اچھا کس کے ڈھکن کھول کے جو ہے بوتل میں سے جن کو نکالنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ بہت وسیع ہے، اس کو اپن نے پھیلانا ہے. اس کو یعنی اس کو جو ہے بوتل میں سے، یعنی بند بوتل میں سے جن کو نکالنا ہے. ہاں. اور اسلام کھلا ہوا مذہب ہے. جی چلیے. لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگوں کے میں نے نام لیے تھے، وہ عام مسلمان اس میں سے ایک ہمارے الیاس شرف الدین ہیں، ان کے والد صاحب بھی ہیں اور فوجی تھے. ہم میں سے بہتر، ایک منٹ، ہم میں سے میں بات پوری کر لوں. کتنی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا اگر کوئی دیش بھکت ہے، ہم تینوں میں سے پیناز میرے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہے عبدالحمید صاحب کہ وہ پیناز کو بار بار یہ جتا رہے ہیں، ارے بھائی میں ذرا پیٹ کھجا رہا ہوں، ذرا پوری طرح سے پیٹ کھجانے تو رک جاؤ ذرا، تاکہ میں اپنی پیٹ کھجانے کا کام پورا کر لوں. ہاں، نہیں تو یہ ذلیل کر دیں گے. اب بھی کر دیا اس نے، 6600 آیات میں کہیں بھی نہیں ہے بول کے بول دیا، انہیں منہ پہ ہی مار دیا وہیں. جی 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 جی. کیونکہ ان کے والد فوج میں تھے. فوجی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. تو اسلام میں بڑی گنجائش ہے، لیکن اگر ہم اس کو کٹر پن کے راستے پہ لے کے چلیں گے تو سمسیاں پیدا ہوں گی. پھر یہی ہوگا جو توقیر رضا خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا، یا وہ ویسے کہتے ہیں کہ مودی جی تو اگر چلے گئے پہاڑوں میں، یوگی جی اگر چلے گئے جنگلوں میں یا اپنے مٹھ میں، تو ہندوؤں کون بات. ایسی زبان نہیں بولنی چاہیے. سچ والا جی، یہ تو نارمل پڑھا لکھا انسان بھی ایسی بات نہیں کرتا. یہ اردو کا جانکار ہے.
भाई मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका ये हाल है, ये हाल है इनका। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं जी। देखिए ऐसे दिन भी आने थे जो है दुनिया को ऐसे दिन भी देखने थे, मगर वो भारतीय जो है, भारत का हिंदू ऐसे लोगों को इनकी बातें सुनने का आदी है, ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करने का आदी है, आदी उसको आदत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है, क्या करें। नहीं तो ये रिटायर हो गए तो ये घर पे इनको सामाइन मिल नहीं रहे होंगे, तो ये हाँ, टीवी पे आ जा रहे खिजाब लगा टीवी के पे और आकर जो ऐसे है जी, सफेद झूठे जी। बातें कर रहे। क्या करें, सुनने के लिए लोग तैयार हैं तो अब ये करेंगे ना भाई। लोग जो है इनका चूरन खरीदने के लिए तैयार हैं, तभी तो ये चूरन बेच रहे ना। अरे पलटा कर जो है इनसे सवाल करना, इनकी आंखों में आंखें डालकर जो है ये जो कह रहे हैं उसको जो है इसको रिबटल करने के लिए कोई है तो फिर ये लोग जो है जाके अपने बिलों में घुस जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए बोलते हैं सुनने वाले तैयार हैं। सुनने वालों के पास न तो जो है इन बातों का पता है, न तो जो है कोई रिबटल करने का उनके अंदर जो है कोई इस तरह की जो है कोई उनकी सलाहियत है, हैसियत है। इसलिए जो है ऐसे लोग आकर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं। क्या किया जाए। अरे इंडिया के नॉन मुस्लिम्स तो इतने इम्प्रेस रहते ऐसे लोगों से, बिल्कुल हाँ, झेलते इनको, अच्छा आप सर पे देखिए बिठा कि हिंदुओं की मेजॉरिटी जो अपने आप को बड़े जो है ओपन माइंड या जो है लिबरल कहती है, वो ऐसी इस तरह के लोगों की देखें भाई, वो तो अरे वो तो जो है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है भाई, उन्होंने कहा, इसका मतलब नहीं, इनकी अभी नहीं है बातें सर, एक ये एक रिटायर हो रेफरेंस चुके है। हैं। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए रिटायर तो हो गए, लेकिन इनके साथ ये ओहदा तो लगा हुआ था ना इनकी जिंदगी में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इनका वो मकाम था, इनकी जो है इनका वो ओहदा था, तो इस बुनियाद पर भारत का जो लिबरल हिंदू है वो तो यही कहेगा, अरे भाई इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, अब उन्होंने ये कहा है तो वो जब कहा है तो सही कहा होगा, सही कहा होगा। सही है। जी आगे और चलिए। वो 2-3 सियासी लोगों को बस ऐसा जाहिर कर रहे कि मैं कितना लिबरल हूं उनको बोलकर। और ऐसी जबान जी। इलियास शरफुद्दीन ने कभी नहीं बोली, तो ठीक मैं है, वो इसीलिए कहता हूँ इलियास साहब बहुत सुलझे हुए हैं। ठीक है। He is 10 times अरे better than ओवैसी खुजा साहब। खुजा वो खुजा बात अच्छी आपकी तरह समझ से में आती खुजाओ है, भाई लेकिन एक प्लीज, बार फिर से मैं मुद्दे पर वरना आऊँ, वो आप तो मुझे दांत समझा निकाल रहे के थे बैठे कि हैं, जब हम लोग शुरू कर रहे थे, हम कहीं लोग कतर बातचीत देंगे कर काट रहे भी थे, सकता है। तो आपने मुझे हाँ बताया था काट कि सकता ऐसा है नहीं जी, है कि बिल्कुल इस्लाम किसी वक्त में भी काट सकता है। वंदे अच्छा मातरम ये कहने इलियास की या सैफुद्दीन फिर साहब जो हैं, ये जनगण वो शख्सियत हैं कि एक तरफ जो है वो क्या नाम अंबर जैदी साहिबा आई थी, तो हाँ, ये शख्स जो है, अरे इतना तो ख्याल रखना, एक सामने खातून है भाई, खातून का कुछ तो जो है कुछ उसका जो है लिहाज रखना चाहिए। ये शख्स तो इतनी बदतमीजी पर उतर आया था, मैं क्या बताऊं। तो ये हाल है इनका। अब वो ये अपने जो है फेरोज बख्श साहब को पूरी तरह से पता है कि अगर ये इस शख्स की पीठ अगर न खुजाएं तो ये कतर देगा इनको। हम्म, पीठ अगर न सहलाएं तो ये कतर इनको जो है ठीक ठीक तरीके से जो है एक जगन जगह जो है कतर देगा इनको, जगन जगह। तो इसलिए जो है वो ये इनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे शख्स की क्योंकि ये बार बार ये दांत भी दिखा रहे हैं ना, तो हाँ, इनको डर दांत लग दिखा रहा है, अरे यार जो है ये तो कतर डालेगा मुझे, तो बेहतर है कि बार बार जो है इनकी पीठ फैलाता रहूं। तो ये हाल है। देखें आगे चलिए। मन गाने की गुंजाइश ना हो। आप मुझे कुछ हवाला दे रहे थे, दारुल हरम और दारू। अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे थे, अगर आप समझा पाए वो बात भी। अच्छा जी देखें, ये जलेबी होती है देखिए ऐसा मुसलमानों है, की। मेरी बात हाँ, सुनिए। हाँ, सुनिए, सुनाइए भाई, अभी सुनाइए। पाए वो बात भी। जी देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। देखिए सारे मजहब अच्छे हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आई एम अ मुस्लिम, माय रिलीजन इज बेस्ट। अगर मैं ये कहूँ माय रिलीजन इज बेस्ट, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्शन करके दिखाना होगा। अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो लोग कहेंगे इस्लाम अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, अच्छे इसके मामलात हैं, ये मदद करता है, अच्छी बातें करता है। ठीक है, सारे मजहब अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, मतलब सफरनामा इब्ने बतूता आपने पढ़ा होगा, कुछ मैंने अच्छा उसका हिस्सा पढ़ा है। तो इब्ने बतूता इंडिया आए थे जब, उन्होंने ये कहा था कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गया हूँ, अफ्रीका में भी गया हूँ, मैं वहाँ भी गया हूँ, यूरोप भी, और मलेशिया भी गया, वो इंडोनेशिया गए, इंडिया भी आए। उन्होंने कहा सबसे अच्छा जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है।
क्या वजूहात हैं वो वजूहात मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनका कोट अच्छा है। नहीं पढ़ी। तो मेरे कहने का अच्छा मकसद मतलब ये है काम इब्ने की बात बतूता मुझे नहीं सनद पड़ी। है, वो सनद है इब्ने बतूता पूरी दुनिया में अच्छा अच्छे मुसलमानों की। यानी अब अच्छे मुसलमान की सनद है, लेकिन वो क्या वजह है वो मैंने अच्छा वो ये नहीं पढ़े समझ वो नहीं भाई। पढ़े इन्होंने। अगर वो नहीं पढ़े, यानी मतलब ये है कि अगर इब्ने बतूता ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को अच्छा बताया है तो उसकी वजह क्या है ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। जरा इनको थोड़ा सा चंद सेकंड पीछे कीजिए, क्या कह रहे हैं ये हजरत क्या कह रहे हैं क्या देखिए। वजूहात हैं वो वजूहात मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनका अच्छा कोट है। तो मेरे कहने का मकसद ये, हम वजूहात नहीं पढ़ी इन्होंने। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि आपके सवाल पूछते ही जवाब दी थी ना, वजूहत मैंने नहीं पढ़ी, उनका कोट है बोले। वजूहात नहीं पढ़ी वजूहात नहीं पढ़ी मैंने। चलिए मैं तो सोच रहा हूँ सच वाला जी, न्यूज नेशन पे ये आ जाना आपके सामने वाइस चांसलर, ये बहुत ये मजा दोनों आएगा रहना भाई, दोनों को खींचता हूँ मैं जी अच्छी तरह से जी, दोनों रहना, जी मैं जी अकेला काफी है जी। के जनगण मन कहने से वो हो जाए। हाँ, वंदे मातरम में अगर हम ये सोचें हम सिजदा कर रहे हैं, भारत माता एक मूर्ति है, ये सोचने का ढंग है। अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं वंदे मातरम गा भी लूंगा, मैं बड़ा मजबूत हूं अपनी जड़ों में। और एक छोटा सा वाकया मौलाना अबुल कलाम आजाद का मैं अरे कोट करता हूँ। फुल आजादी स्टॉप हुई लगा रही तो नहीं, फिर कॉम क्या में दे रहा हुआ बस। कि मौलाना हाँ, आजाद ने एक यानी रेलवे जो स्टेशन पे मर्जी फगवाड़ा किस्से था, कहानियां पत्थर सुनाओ जी, जो मर्जी किस्से कहानियां सुनाओ, और भारत का हिंदू तो बेचारा है जो इनकी हर बात पे यकीन कर लेगा, यही तो ये चल रहा है ना जी। शराफुद्दीन से इतना डरा हुआ है वो, पहले उसने 30 रोजे कबूल कर लिया, 5 हाँ, नमाजें कबूल कर 5 लिया। टाइम की नमाजें, अगर एक नमाज कज़ा भी हो जाती है तो मैं जाके पढ़ लेता हूँ, शरफुद्दीन भाई मुझे नहीं काटना आप प्लीज, मुझे काटना नहीं, मैं बार बार और ये आपके दांत देखकर मेरे जो सरकारी है फायदों मेरा के हौसला लिए पक्का हो रहे हैं जी। ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ वंदे मातरम तो चल सकता कि नहीं चल सकता, मेरे को वो पूछना चाह रहा, वो डरते डरते फिर दूसरी तरफ भाग जा रहा। अच्छा जी जी देखो जी। क्या। फिर क्या हुआ कि मौलाना आजाद ने एक रेलवे स्टेशन पे फगवाड़ा था, पत्थर पे वो फोड़ा, स्टेशन पे नारियल फोड़ा। जो मिनिस्टर थे भाई, उनको काम करने थे, जी बड़े पक्के सड़े हुए मुसलमान थे। नारियल फोड़ा क्योंकि सरकार का काम था। अगले दिन डॉन अखबार कराची से निकला, उसमें जिन्ना साहब का एक कोट था। कहने लगे, जिन्ना साहब ने लिखा था, आज मौलाना आजाद ने एक नारियल फोड़ा है, कल वो टीका भी लगाएंगे। तो उसमें मौलाना आजाद ने कहा, देखिए जिन्ना साहब, मतलब आप तो हैम भी खाते हैं अरे और आप तो अंग्रेजी सूट पहनते हैं, आपने पाकिस्तान बनाने के लिए टोपी पहन ली, शेरवानी पहन ली, मेरा इस्लाम इन चीजों से और पक्का होता है। तो ये उनका कोट था। तो हमें उस रॉ में चलना है, ठीक है उस इलियास साहब, लिहाज क्या से उस रॉ चलना में है। चलना हाँ, चाहिए? इस्लाम एक मिनट मेरी बात, जी मैं बहुत जी इंपॉर्टेंट। चक्कर खा के गिर अच्छा जाती है आखिर तक, ऐसा बहुत लग रहा इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बात। ये कहानियां, मैं बच्चों की कहानियां सुना रहा हूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुनिए भाई। साहब, लिहाज क्या से उस रॉ चलना में है। चलना हाँ, चाहिए? इस्लाम एक मिनट मेरी बात, जी मैं बहुत जी इंपॉर्टेंट जी बात कह रहा हूँ। जी इस्लाम वंदे मातरम कहने से या जनगण जनगण मन कहने से कभी भी वो कमजोर नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं, अब गया ये। मैं आपको भी कह रहा हूँ जी शरफुद्दीन भाई, ये कब हाँ तैयार हो गया, आप ये मत ये कहिए मैं सिजदा इनके कर रहा दांत हूँ। निकल रहे हैं भारत जी। माता मूर्ति है। भारत माता हमारी माँ की तरह है, इसने हमें पाला है, और हम सर झुकाते हैं इज्जत के। हम ऐसे करते हैं ना, आप मुझे मिलेंगे, मैं ऐसे सलाम करूंगा, तो क्या मैं आपके साथ सिजदा कर रहा हूँ? ऐसा ऐसा सलाम ये सिर्फ तवायफ के कोटे पे होता, और कहीं नहीं होता जी ऐसा और सलाम, कहीं कोई भी नहीं अरब होता नहीं करता भाई ऐसा सलाम। जी, उसी जहर तरह बात का ये है। देखो कैसा तो बता मुझे रहे हो मिलेंगे, सलाम। हमें जी पाला है, और हम जी। सर झुकाते हैं इज्जत के। हम ऐसे करते हैं ना, हाँ आप मुझे मिलेंगे, मैं ऐसे सलाम करूंगा, तो क्या मैं वाह। आपके साथ तवाइफ सिजदा के कर रहा हूँ? कोठे पर उसी किया तरह जाता का है है ऐसा कि सलाम वंदे जी। मातरम में हाँ वही हाँ। स्पिरिट है। बाकी अब जी चीरा फाड़ी इलियास कोई साहब, कुछ भी करे आप इसमें। मानेंगे? आप दो ताबी। देखिए, मेरे को अगर आप बोलेंगे कि भारत जो मुल्क हमारा प्यार था, वतन, भारत जिंदाबाद का नारा लगाइए, तो सऊदी अरब वाह में बैठकर, मक्का मदीना के अंदर भी रहकर इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, हिंदुस्तान हाँ जिंदाबाद यही का स्पिरिट नारा, है हम वाह इंडिया सबकी। जिंदाबाद का नारा लगाइए, वाह मैं वाह इंशाल्लाह इंडिया वाह। जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी है वंदे मातरम की, उसमें नीयत, जुबान, एक्शन, तीनों चीजें रिफ्लेक्ट ये करती है कि नियत, जुबान और एक्शन, और रिफ्लेक्ट भी हो गई सच वाला जी। रिफ्लेक्शन जी हो गई जी हाँ अरे जी अरे हाँ। अरे, हद है ये। दीन को आप सिजदा कर रहे हैं,
मादर वतन कहते हैं हम लोग कि ये मेरी मादर वतन, ये मेरा वतन है जो मेरी माँ के बराबर है जनरली, उर्दू का एक टर्म है। वैसे ही मेरी माँ के लिए मैं इज्जत और एहतराम से जब जाता हूँ तो अल्लाह हुक्म देते हैं माँ बाप के सामने कंधे झुका के रहो, तो मैं एहतराम के साथ कंधे झुकाकर वालिदैन के सामने रहता हूँ। वालिद तो गुजर गए, वालिदा के सामने रहने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही मुल्क के आगे एहतराम, मुल्क के लिए जिंदाबाद का नारा लगाना, मुल्क के लिए जय का नारा लगाना, मैं आधी रात तैयार हूँ। लेकिन जहां पर टर्मिनोलॉजी में सिजदे का लफ्ज आ गया, सर और मस्तक झुकाने का लफ्ज आ गया, वहां पर मुझे आपत्ति है और मैं एहतियात करता हूं तो ये कुरान हदीस के खिलाफ। राष्ट्रगान, चलिए भारत माता की जय में आप सोचते हैं कि एक मूर्त है और उस तरह का रूप दिया गया है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन राष्ट्रगान में ऑब्जेक्शन क्यों, जनगण मन में ऑब्जेक्शन क्यों, वंदे मातरम में ऑब्जेक्शन क्यों? जिस तरह से फिरोज साहब ने कहा, क्या वैसी सोच नहीं अपना सकता हर मुसलमान? वो भी तो 5 वक्त के नमाजी हैं। फिरोज भाई ने अपने तरीके से वंदे मातरम का एक पर्टिकुलर तफसीर, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है और वो उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कुछ अमल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वंदे मातरम का ट्रांसलेशन देखेंगे, भारत भाग्य विधाता का ट्रांसलेशन देखेंगे, हकीकी माने देखेंगे, तो वहां पर साफ तौर पर अल्लाह के अलावा किसी और को ओबीसियंस नहीं, डायरेक्ट वर्शिप की शक्ल दी जा रही। और जब माता की मूर्ति बन गई और मूर्ति बनने के बाद एक कौम उसकी पूजा शुरू कर डाली, तो वहां पर वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ गई। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कुरान सही हदीस की रोशनी में जहां शिर्क की सख्त ममानियत है, इन तमाम चीजों से एहतियात किया जाए। इलियास साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बुत परस्ती, ठीक है, भारत माता को बुत की शक्ल दे दी, बुत परस्ती आपको नागवार गुजरी, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है इलियास साहब। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रगान की, जहां कोई बुत नहीं है। आप अपने देश के सम्मान में, आप अपने तिरंगे के सम्मान में, और मुझे पूरी उम्मीद है तिरंगे का सम्मान जैसा मैं करती हूँ, फिरोज साहब करते हैं, वैसे ही आप भी करते हैं। तो तिरंगे के सम्मान में हम क्यों नहीं राष्ट्रगान गा सकते अगर हम उस देश के बाशिंदे हैं, अपने धर्म मजहब से अलहदा उठकर, ऊपर उठकर? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार शुरू में एक्सप्लेन करा और एक बार जिलेबी फिर बनाता हूं। कुरान सही हदीस में जिस चीज पर मुसलमान 0.0001% कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं जाते आता रहता हूँ, और वहां पर उस खबर पर भी कोई सिजदा नहीं करता। दुनिया की कोई मजार पर सिजदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरे भारत को सिजदा करने की बात नहीं हो रही भाई। अरे भारत को सिजदा करो, कोई कह रहा है ऐसा? वो बेचारी सिर्फ गाने की बात कर रही, नेशनल एंथम गाने की बात पूछ रही है। सवाल क्या है और उसको किस तरीके से ये लोग घुमा रहे हैं। भाई भारत को कोई जो है मूरत की शक्ल बनाकर उसके सामने सजदा करने की बात कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं रहा ना। मगर अब ये फिर भी जो है ये अपने तौर पर जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपने तौर पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अल्टीमेटली इन दोनों की बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी तरह से ये बातें जो है ये एक दूसरे की पीठ खुजाते खुजाते यहाँ से जो है टरखा दिए, बात खत्म। ख्वाजा मोइन, वो अहमद रिजवी साहब को लिंक दीजिए आप। अहमद रिजवी साहब ज्वाइन करना चाह रहे हैं और एक एडवोकेट साहब है, वो भी कुछ बात करना चाह रहे थे। अगर दोनों को लिंक दीजिए, मैं इधर यूट्यूब के स्क्रीन पर हूँ। जी सर। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी की खबर नहीं हो सकती कायनात में, और वहां पर भी सिजदा मना है, सिजदा सिर्फ रब को किया जाता है। तो कहीं पर भी गुंजाइश ये निकली कि अल्लाह के साथ किसी को भी एंट्री दी जा रही है। रुक जाइए हमारे अब्दुल हमीद साहब। अच्छा, सिजदा सिर्फ रब को किया जाता है या काबा को किया जाता है? काबा को। अब सवाल ये है कि अच्छा, बल्कि दूसरे मुल्क में भी हो तो काबा रुख से सिजदा करना है आपको। अच्छा, डायरेक्शन काबे की तरफ लेना है। अच्छा, काबे की तरफ क्यों करना है भाई? क्या काबा में अल्लाह रहता है? हाँ, अल्लाह का घर है वो। भाई एक तरफ तो इस्लाम का ये क्लेम है कि फ़ाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ कहीं तुम अपना जो है अपने आप को मोड़ लो, वहीं पर अल्लाह का चेहरा है। जहाँ कहीं तुम अपने आप को मोड़ो वहीं पर अल्लाह का चेहरा है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और ये मशरिक़ भी और मग़रिब भी ये सारे के सारे अल्लाह के लिए हैं। तो ऐसी सूरत में
آپ पर्टिकुलरली एक चौकोर डब्बे की तरफ जो है रुख कर कर उसके डायरेक्शन में सजदा करने का क्या मतलब है? मतलब वो अब काले यहाँ पर पत्थर को मुसलमान ये सजदा कर कहते रहे हैं। हैं, जी हाँ, अब यहाँ मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई हम जो है हम काबा को सजदा नहीं कर रहे हैं, हम तो सजदा अल्लाह को कर रहे हैं। अरे भाई जब अल्लाह को करना चाहते हो तो अल्लाह तो हर जगह है, आपका ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों है? यहाँ पर भी असल में अरबों की ज़हनी गुलामी है। अरबों ने इनके मतलब जितने मुसलमान हैं उनके मत्थे पर ये दे मारा है कि नहीं देखो लोगों, तुम अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो तो इसका मतलब यह है कि हमने जिस घर को जिस डब्बे को बनाया उसको हम काबा अल काबा नाम रखा हमने, और यहीं पर जो है अल्लाह है, ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर की तरफ तुमको सजदा करना है। मतलब माथा इधर टिकाना है और अल्लाह की तरफ पेंदा उठाना है। हाँ, अब माथा इधर है और जो है पेंदा अल्लाह पेंदा ऊपर जो है। अच्छा, जब ये अल्लाह की बात करेंगे हाथ इनकी उंगली ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन सजदा कहाँ करते हैं? ऊपर नहीं करते, सजदा करते हैं चौकोर डब्बे की तरफ। देखें इनका जो है इनकी कॉन्ट्रडिक्शन जरा देखें। और फिर जब जो है बात की जाती है, अरे भाई आपके ये जो है भारत है, ये आपका देश है, आपका वतन है, इनसे मोहब्बत करना है, इनसे वफादारी करना है, और इनके ज़ाहिर बात है इनके सामने अगर एहतराम की सूरत में झुक जाना है तो इनको जो है इनके अंदर आग लग जाती है, तन बदन में आग लग जाती है। और यही वजह है पूरी दुनिया के जितने लोग हैं किसी को भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता सिवाय मुसलमानों के। मुसलमान इस बात पर जो है पिल जाते हैं, इस बात पर तब जाते हैं, वो जो है चाहे कुछ हो जाए भारत के लिए जो है वो नहीं करेंगे। भारत भाग्य विधाता नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये जिद है, इनकी जिद है, और यही वजह है कि ये दुनिया की किसी भी दूसरी नेशन के साथ मिंगल अप नहीं होते। स्क्रीन पे जी अहमद रजवी साहब जो है तशरीफ लाए हैं। जी जनाब, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी जनाब, आदाब सतवारा जी और अब्दुल हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको स्ट्रीम में लेने का। जी आदाब सर, आदाब जी मैं ये सुन रहा था, आप इत्तेफाक से ये वाला मैंने शो देखा नहीं, ये आप लोग जो प्ले कर रहे हैं यही देख रहा हूँ मैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो साहब हैं दूसरे, फिरोज साहब शायद इनका नाम है, ये वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, पढ़ मौलाना आजाद के। जी इनकी बातें बहुत ही बचकाना हैं। ये मतलब इनकी बातों में मुझे कोई गहराई नजर आती नहीं है, एक पढ़े लिखे आदमी की बातें लगती नहीं है। अभी पिछले एक शो में इन्होंने साहिल से बात की है, ये उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मतलब इनकी बातों में इंतहाई तजाद है, इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलें। एक तो इनकी शख्सियत अजीब सी है, दूसरी बात कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे जय हिंद कहने में क्या प्रॉब्लम है। मैं तो कह सकता हूँ जय हिंद, उसमें क्या है, और जय माता कहते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ गई? माँ की बात कर रहे हैं ना, भारत माँ की बात कर रहे हैं, तब भी ठीक है। माँ को इंसान अगर उसकी जय कहते तो इसमें कोई मुझे तो बुराई नजर नहीं आ रही। और तो असल में बात यही है ना कि दुनिया के किसी भी शख्स को इसमें कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सिवाय मुसलमानों के। इसीलिए कहता हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया से अलग हैं, पूरी दुनिया से निराले हैं, ये कहीं से भी मिक्सअप नहीं होते, मिंगल अप नहीं होते। और तो और रिजवी साहब, अगर मैं मेरी माँ के पैर छू भी लूं और मेरी माँ को सजदा भी कर दूं, लिटरली मेरी माँ के सामने अगर मैं सजदा कर दूं उसकी अकीदत में, उसके ताजीम में, तो क्या हो जाएगा? अल्लाह के बराबर हो जाएगी मेरी माँ? देखें, बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो मानते हैं कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर होता है, तो आपकी नियत तो वैसे भी अल्लाह बनाने की नहीं है उसको, तो आप तो सिर्फ मोहब्बत में, इज्जत में, तकरीम में ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? असल में बात यह है ना, देखें अरबों ने अपने खुदा को जिसका नाम अल्लाह रखा वो इस तरीके से जो है तराशा है कि वो एक बिल्कुल नकचढ़ा, एक गुसेला जो है, एक अरबी सरदार है। अल्लाह गोया एक नकचढ़ा अरबी सरदार है जो जरी जरी बात पर जो है जेलस हो जाता है, उसको जो है वो चिढ़ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे तो कोई जर्रा भी जो है किसी की तरफ झुक जाए, अच्छा तो मेरी तरफ नहीं झुककर उसकी तरफ झुक रहा, अच्छा नहीं, अच्छा मेरे सामने भी झुकता है, जाके उसके सामने भी झुकता है, अच्छा ठीक है, अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, तेरे को जो है मैं जहन्नम की आग में जो है तेरे को तलूंगा, भूनूंगा, तेरे कबाब बनाऊंगा।
جی یہ ہے اس اللہ، کی یہ اللہ ہے۔ انسیکیورٹیز ہیں اللہ کی ہاں انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں. اتنا جو ہے وہ یعنی اتنا ڈرا، اتنا جو اس کو اتنی پریشانی رہتی ہے کہ کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اتنا یہ گاڈ جسے کہا گیا عربی اللہ، وہ اتنا جیلس ہے کہ ذری سی کوئی بات بھی ہو جاتی ہے تو اس کی پوری خدائی جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے. دیکھیں سچ والا جی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی اللہ کی مثال ایسی ہے انسیکیورٹیز کے معاملے میں کہ ایک بیچاری عام شکل صورت کی عورت ہے، اس کی شادی ایک بہت ہی ہینڈسم انسان سے ہو جاتی ہے. جی اب وہ بیچاری دن بھر پریشان ہے گھر پہ کہ میرا شوہر باہر کیا کر رہا ہوگا، کس سے مل رہا ہوگا، کس سے نہیں مل رہا ہوگا. جی تو انسیکیورٹیز کا لیول جو اللہ کا ہے وہ ایسا ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. مجھے تو اس عورت کا لگتا ہے جو بیچاری Good one. پریشان رہتی ہے کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہوگا باہر. کیونکہ میرا شوہر جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور میں جو ہے ایسی ہوں، تو اب وہ اگر جو ہے 2 منٹ بھی لیٹ آتا ہے، اچھا 2 منٹ لیٹ آیا تو کہیں نہ کہیں کسی لڑکی کو دیکھا ہوگا. جی بالکل. اس پہ ایک یہ لطیفہ حال بھی ہے جی سچ والا جی، اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں ان کی بیگم صاحبہ کا یہی خیالات تھے، جی اور وہ روز جب آتے تھے تو بیگم صاحبہ ان کے فوراً سے پیشتر کپڑوں پہ چیک کرتی تھی کوئی بال مل جائے، اور روز ان کو ایک بال مل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی، کبھی گرے، کبھی مطلب بلیک، کبھی براؤن، جو بھی ہے. اور وہ روز کہتی تھی آج اس عورت کے پاس گئے تھے، آج اس عورت کے پاس گئے تھے. ایک دن بیچارے آئے تو بیگم نے وہی حرکت کی دوبارہ سے، ان کو کوئی بال ہی نہیں ملا. اس کو بڑا غصہ آیا اس عورت کو، کہنے لگی کہ لگتا ہے تم گنجیوں کے پاس بھی جانے لگے ہو. تو مطلب انسیکیورٹی کا عالم یہ ہے. جی ہاں گنجوں کے پاس گئے. آج جو ہے ایک ایسی عورت کے پاس گئے جس کے سر پہ بال بھی نہیں ہے. تو اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ جو ہے اتنا انسیکیورڈ ہے، اتنا جیلس ہے کہ وہ ذری بات پہ ہوتے. اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ عربوں نے اپنے خدا کو جیسے کچھ تراشا، وہ اپنی تراش کو لوگوں کے متھے مارا، اور یہ عربوں کے غلام ایز اٹ از اس کو لیے اپنے جو ہے ڈھوئے پھر رہے ہیں. کبھی ان باتوں پر کبھی جو ہے یہ کوئی کبھی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے، کبھی ان کو یہ سوچتے نہیں یار یہ کیسا اللہ ہے یار، کبھی نہیں سوچتے، کبھی بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بدھ کے جس طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ایک پتھر کی عمارت ہے. اور کیا On ہے top of that, اور کیا جب نبی نے اس کی طرف رخ کیا تھا تب تو وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، تب تو بتوں کو ہی سجدہ کر رہے تھے. بالکل. اچھا اور دیکھیے جو ہے ایک یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھئی آپ جو ہے اس چوکو ڈبے کو جو ہے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگا نہیں بھئی ہم تو اللہ کی جو ہے مطلب اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ قرآن میں تو بار بار آتا ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم جو ہے اپنے آپ کو پھیرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ہم تو یہ جو ہے صرف یہ اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن صرف ایک ڈائریکشن کے لیے. ارے بھائی آپ جو ہے اگر اللہ اس ڈائریکشن میں ہے تو تھوڑے دیر کے لیے آپ یہ کریں کہ 1 مہینے تک آپ نماز جو ہے کعبے کے اپوزٹ جو ہے ڈائریکشن میں پڑھ کے دکھائیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے نا بھائی، اللہ تو ہر جگہ ہے. جی ہاں یہ کعبے آیت کے موجود ہے. اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک مہینے تک آپ نماز پڑھ کے دکھاؤ، تب میں مانوں گا کہ آپ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہو. لیکن یہ لوگ، ان کو بتایا گیا کہ نہیں، عربوں نے جس ڈبے کو تراشا اور جس ڈبے کو اللہ کا گھر کہا ہے، یہ عربوں کے ذہنی غلام یعنی عربوں کے بنائے گئے اس چوکو ڈبے ہی کی طرف جو ہے سجدہ کریں گے. بلکہ وہ جو قرآن کی آیت ہے، قدم سے جی ہاں ایک عمل سے جو ہے عربوں کی ذہنی غلامی جھلکتی ہے. جی بولیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ جو آیت ہے قرآن کی، تو کہتے ہیں تم جس طرف منہ کر لو اللہ کی طرف تمہارا چہرہ ہو جائے گا. یعنی یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ. یعنی جہاں کہیں تم جو ہے پھرو اپنے آپ کو موڑو گے تو وہیں پر اللہ کا جو ہے چہرہ پاؤ گے، وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے. بات ختم ہو گئی. بالکل. اور مسلمان اس بات کو مطلب پڑھتے بھی ہیں، جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، اس کے باوجود اس احمقانہ بات کو مانے بیٹھے. بات یہی ہے نا، عربوں نے ان کو بتایا ہے کہ نہیں خبردار، یہ ہم نے جو ہے چوکو ڈبہ بنایا ہے اور یہ ہمارے اللہ کا جو ہے گھر ہے، تو تم کو ہماری غلامی کرنا ہے تو اس ڈبے کی طرف جو ہے تم کو جھکنا ہے. اچھا سچوالا جی، ایک بات مجھے نہیں پتا تھی، آپ حضرات بتائیے گا کہ انڈیا میں جو ان کا ترانہ ہے، جس ہم ترانہ کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، مجھے نہیں پتا، نیشنل اینتھم جو ہے وہ آپ کا، وہ بھی مسلمان نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں پڑھتے. وہی تو بات کر جھگڑا رہے چل رہا ہے نا، اسی پر تو جھگڑا چل رہا ہے.
حالانکہ کہنے کو تو دونوں مسلمان ہیں، لیکن ان کی جو ہے آدھے گھنٹے کی گفتگو سے وہ بیچاری جو اینکر ہے وہ پریشان ہے، وہ تو سر کو اپنے سر کھجاری، ارے یار ان دونوں کی باتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا۔ نیشنل اینتھم پڑھنے میں کیا پرانی ہے؟ مطلب وہ تو آپ اس ملک کے شرکیہ مسلمان ہیں کلمات ابھی، ہیں، شرکیہ یہی تو کلمات ہیں۔ مسلمان ہیں، جی ہاں، شرکیہ کلمات سے کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اب کیا بتائیں یار، جو ہے ان کی فتوا ہے دنیا بھائی وندے ماترم میں، جی انڈیا میں جی، فتوا ہے وندے ماترم پہ۔ یعنی اس کے الفاظ ہیں بھارتا بھاگیہ ودھاتا، اس کا اچھا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے تمہاری قسمت بنانے والا ہے۔ اچھا حالانکہ سچ پوچھا جائے تو مسلمانوں کی قسمت کس نے بنائی؟ بھارت تو بنائی ہے نا بھائی، بھارتی مسلمانوں کی قسمت کون بناتا ہے بھائی؟ بھارت نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہندوستانی مسلمانوں کو کیا نہیں دیا بتائیے، کیا نہیں دیا؟ ہاں آپ کا ملک ہی دیتا ہے آپ کو جو کچھ دیتا ہے۔ ارے بھائی بھارت نے مسلمانوں کو پاکستان بھی دیا ہے نا، پاکستان کس بالکل نے دیا؟ کس نے بالکل دیا؟ بھارت یہاں کا بڑے حصہ ہے، بڑے عہدے دیے، سپریم ہاں کورٹ کے بالکل چیف بھارت کا جسٹس حصہ رہے ہیں، وائس پریسیڈنٹ رہے، پریسیڈنٹ رہے، منسٹری میں ہیں، آج کئی الگ کتنی الگ سیاسی آزادیاں پارٹیاں دی، ہیں۔ کیا کچھ جو ہے اسلام جیسے جس عربوں کے جو ہے مطلب اس کلٹ کو لا کر یہاں پر جو ہے پنپایا گیا، یہاں پر پھلا پھولا اسلام، کیا نہیں ہوا بتائیے؟ کیسے کیسے جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے سب کچھ اتنے اختیارات ملے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اس کو بھارتا بھاگیہ ودھاتا کہنے میں جو ہے ان کے اندر تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ جبکہ ہم انڈیا اپنی میں زبان میں بولتے ہیں احمد سرفراز رضوی جی۔ صاحب، جی احمد رضوی صاحب، انڈیا کی جو زمینات ہے ان میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر وقف بورڈ ہے انڈیا کا، مسلم وقف بورڈ، اور قانون میں مسلم پرسنل لا بورڈ سب سے بڑے سٹیک ہے ان کی انڈین گورنمنٹ میں۔ جی او واو، لیکن ہم ایون پاکستان میں بھی سچوالا جی، پاکستان میں بھی پاکستانی بولتا ہے، یہ جو مسلمان بھی ہوگا کہتا ہے کہ مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے۔ اب وہ اس سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے اس کو تعلیم وہیں پہ پلا بڑھا، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وہیں سے اس کو عہدے ملے جو اس نے کام کیا، گورنمنٹ میں کیا یا جو کچھ کیا، اور پاکستانی بولتے ہیں بات کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ انڈیا میں رہنے والا انڈیا دے گا؟ نہیں نہیں مطلب بھئی ایک ہی ہے آپ نا۔ ذرا دیکھیے احمد رضوی صاحب کہ ہندوستانی مسلمان کے لیے ایک باقاعدہ ایک آئیڈینٹی ہے نا بھارت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ بات بھی کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان ایک جو ہے ایک آرٹیفیشل جو ہے ٹیریٹری ہے، ایک آرٹیفیشل ملک ہے، لیکن بھارت ایک اس کی اپنی جڑیں ہیں۔ بالکل اگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک ہندوستانی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں انڈین ہوں تو یہ اس کے لیے گرو ہے، گرو، فخر ہے۔ ایک پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب پاکستان بھارت کے سامنے صرف ایک اس کی حیثیت کھلونے جیسی ہے، ایک آرٹیفیشل کھلونا ہے بھائی، اس کی کیا حیثیت ہے بتائیے؟ اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے دیش سے جو ہے واقعی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں کہتے بھی ہیں تو یہ صرف ان کی جو ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے اور صرف منافقت ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے بہت۔ میں آپ کو سے آپ کی بات پہ مجھے صرف تھوڑا سا اختلاف ہے، کھلونا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو صحیح نہیں ہے لفظ، لیکن ہاں آرٹیفیشل ضرور ہے، کیونکہ پاکستان بھارت کا حصہ تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات اس میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انڈین کہتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی شخص گورا پوچھتا ہے، بالکل جی، جب کوئی دیکھیے گورا ہماری مجھ سے جڑیں پوچھتا ہے انڈیا تو میں سے اس کو جڑی بتاتا ہوں ہوئی میں ہیں نا انڈین ہوں، کیونکہ میں واقعی انڈین مانتا ہوں اپنے آپ کو۔ ہاں جب مجھ سے کوئی انڈین یا پاکستانی پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا فرق کیا ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن انڈین میں بیسکلی میں انڈین ہوں۔ اگر کوئی شخص میری شکل دیکھتا ہے تو وہ مجھے دیکھ کے کیا کہ انڈین ہے، کیونکہ میں اسی اپنی جڑوں جگہ کی کا۔ طرف بھی اگر دیکھنا ہے تو پاکستانی بھی بیسیکلی وہ انڈین ہی ہے نا، ہاں بالکل ضرور انڈین وہی ہے، ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ انڈیا تھا وہ، اور ایک ہی ملک تھا یہ، ہم لوگ کا ڈی این اے ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، کلچر ایک ہے، میں کہوں گا پورا ایک ملک تھا یہ۔ اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں کہنے میں کہ میں اپنا کو انڈین کہتا ہوں۔ امریکہ میں اگر کوئی گورا مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا ہوں میں انڈین ہوں، دیٹس اٹ، کیونکہ میں واقعی انڈین ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو، اپنے آپ سے مانتا ہوں کہ میں انڈین ہوں۔ پاکستان تو انہوں نے لائن کھینچ کے نام رکھ دیا، لائن کھینچنے سے چیزیں بدلتی نہیں ہیں، وہ زمین تھی بہت وہ خوشی کی انڈیا بات ہے یہ آپ نے اس بات کا اظہار کیا، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہی بات کرنا آبجیکشنیبل ہے، ہم جواب دیتے دیتے تھک جاتے ہیں اتنی سی بات میں، اور یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریزنیبل بات آپ پاکستانی نے بات سوچی، مانتے بالکل۔ نہیں، پاکستانی اس بات کو برا مانتے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے بات کہہ دوں تو ان کو برا لگے گا، بلکہ مجھے کہیں گے تم مطلب میرے لیے تو غدار کے لفظ کہنا تو مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے،
फौरन नहीं, गद्दार हो लेकिन जाऊंगा। अमर अजमी साहब देखिए कि अगर मैं अपने आप को इंडियन कहता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी भगवान को, किसी मूर्ति को, किसी जो है मंदिर में जा, नहीं। देखिए मैं ये बात क्लियर करता हूं कि मेरा, यानी मैं इंडियन होने के बावजूद मेरा ना किसी भगवान से कोई ताल्लुक है, ना किसी मंदिर से, ना किसी पूजा पाठ, कुछ भी नहीं। ना मेरी कोई किताब है और ना मेरा कोई प्रॉफिट है और ना मेरी कोई कमांडमेंट्स है। उसके बावजूद मैं भरपूर हिंदुस्तानी हूँ, भरपूर हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, तो ऑफ कोर्स बात यही इंडिया तो में, है। हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मेरे ख्याल में नास्तिक भी होंगे, एथियस्ट भी होंगे, क्रिश्चियन है, बहुत से हैं, और तो पूरे उसका पूरे इससे कोई धर्म के ताल्लुक साथ नहीं है। रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं मजहब का इससे जी कोई हाँ, ताल्लुक। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ये जनाब, अब ये 5-7 यहाँ का मिनट की रह गई हैं, मैं इसको तो कंप्लीट जल्दी कर हाँ लेता हूँ। खत्म करके फिर हाँ आगे बढ़ेंगे। बहुत ओके। प्यारी प्यारी बातें की है इन्होंने, इनको सुनेंगे। मुल्क हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बुजुर्ग वली हो, चाहे गुरु हो, कोई हो, वहां पर साफ तौर पर उनको साइड में किया तो जाएगा। राष्ट्रगान में इज्जत और कैसे, एहतराम ठीक है आप प्राप्त मुझे किया समझाइए, राष्ट्रगान में कैसे अल्लाह से बराबरी करी जा रही है? कौन सी वो लाइनें हैं जहां आपको लगता है कि आप राष्ट्रगान में बुत परस्ती कर रहे हैं या अल्लाह से बराबरी कर रहे हैं? मुझे समझाएं। अरे नहीं, इसमें मैं इससे पहले कि एक मिनट इलियास भाई, मैं एक बात कह दूं। देखिए सुनिए पीनाज जी, फिर डर जाओ। इलियास भाई ने जो डिबेट करी है, मैं मेरे ख्याल से अरे सबसे अच्छी उनकी डिबेट्स में एक है। कोई गुस्सा नहीं, ना मैं गुस्सा कर रहा हूँ ना वो गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज को समझाने दांत की कोशिश की है। देखो जरा, थोड़ा सा दांत। शायद अल्फाज जो हैं, अल्फाज मेरे अलग हैं, उनके अलग हैं, मकसद हमारा एक है। वो भी ये कह रहे हैं कि सिजदा सिवाय खुदा के किसी के आगे नहीं होता। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं अगर वंदे मातरम की बात करूं तो मैं उसको सिजदा किसी हालत में नहीं मानूंगा। पर फिरोज उसने साहब, जिसका एक आदमी उसने सोचिए ना, जिसने मेरे इसका जैसा एक आदमी ट्रांसलेशन जिसे किया है, इस्लाम की वो जानकारी नहीं है, मैं ट्रांसलेशन तो मेरे हिसाब कंफ्यूज से हूँ। ठीक नहीं है। फिरोज साहब भी पीनाज 5 वक्त के नमाजी, सच्चे मुसलमान, रोजादार। इलियास साहब भी 5 वक्त के नमाजी, रोजादार, सच्चे मुसलमान। एक मुसलमान कहता है मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, राष्ट्रगान भी गाऊंगा। इलियास साहब भी मुसलमान, वो अरे कहते हैं दांत कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम नहीं करूंगा, हिंदुस्तान के लिए ये सर फिर कटा डर गए, दूंगा। तो वैसे यहाँ एक वीसी साहब आम डर आदमी गए। के लिए समझिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर करें जरा। कौन करेगा? Let me be very frank and honest that don't be so naive. आप कह रही हैं कि डिबेट से आप इस्लाम सीखती है, हम लोग से सीखती है, और मैंने 2-3 बार समझाया, फिर भी आप नजरअंदाज कर हाँ। रही है। नहीं और मेरे एक को बात कंफ्यूजन यहाँ कहाँ से आ रहा है? इलियास साहब नहीं समझ रहे आप, मेरी नजर में आप समझिए ना, मेरी नजर में आप भी मुसलमान हैं और फिरोज बख्श साहब भी इस्लाम है, मुसलमान हैं। तो अगर आप कहते हैं कि अलाउ नहीं करता है मेरा रिलीजन, वो कहते हैं अलाउ करता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आना अपने आप में है ना। अरे अरे ना सिंपल या कंफ्यूजन तो फिरोज इंशाल्लाह दूर हो साहब जाएगा। कम मुसलमान है, आप ये कह दीजिए, वो सच्चे मुसलमान नहीं है, आप ये सुनिए बोल सुनिए दीजिए। पीनाज साहिबा, सुनिए थोड़ा गोल पोस्ट चेंज नहीं कीजिए। हाँ। पक्के मुसलमान इलियास साहब भी हैं, 100% पक्के मुसलमान वो हैं, और मैं भी 100% पक्का मुसलमान हूँ। ऐसा है, हमारे अंदर कोई वो नहीं है, वो कोई नहीं है। कंफ्यूजन नहीं हाँ। है। ठीक है। हम एक ही यानी चीज हम को बोल रहे हैं, इलियास हम भाई दोनों एक एक दूसरे सुनिए, हम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, और जो है जाहिर बात है हम दोनों मुसलमान हैं, लेकिन जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की जब बात आती है तो हम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं। फिरोज साहब का कमाल ये है कि दो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स को मिला के कहते हैं एक ही बात है ये। जी अब बिल्कुल। बताएं क्या क्या बिल्कुल। कैसे बोले आज है जी। एक ही चीज को फॉलो करते हैं। देखिए, इंटरप्रिटेशन और लफ्जों की चीराफाड़ी और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि तुम अपने आप को नेक और पाकबाज मत बोलो, अल्लाह जानता है तुम में से नेक कौन है। तो मैं ये कहता हूँ कि फिरोज भाई हो, मैं हो, कोई भी मुसलमान हो, अल्लाह जानता कौन नेक है और कितना नेक है। बस अल्लाह हमको सही में नेक बना दे, रसूल और सहाबा के रास्ते पे चला के। वाह वाह वाह। दूसरा मसला ये है, मतलब इनको मालूम होगा अपन लोग नेक नहीं है। जी दोनों भी आमीन आमीन बोल रहे थे, अब यहाँ से आगे दुआ मांग रहे हो। जो खुजा लो एक दूसरे की खुजा लो यार। जी जी आगे चलिए। कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला भाग्य का विधाता है सारी कायनात का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कायनात बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम पैदा किया और कलम को कहा लिख, तो उसने पूरी तकदीर लिख दी अल्लाह के हुक्म। अरे ये पढ़ अपने रब के नाम से, ये लिख भी ला लिख। अच्छा लिख देने के बाद जो है 50,000 साल पहले लिख दिया। अच्छा उसके बाद फिर ये जो है लेके आए पढ़ बोले तो वो जो है वो बेचारा पढ़ नहीं सक रहा। माँ आना बिकारीन, माँ आना बिकारीन, माँ आना, बार बार अरे यार मुझे पढ़ना नहीं आता यार। तो हालांकि अल्लाह मियाँ पहले लिख दिए थे। अब बताओ लिखे हुआ नहीं है ना किसी के पास, वो यही तो है। किया
और कलम को कहा लिख, तो उसने पूरी तकदीर लिख दी अल्लाह के हुक्म से। तो ये भाग्य, तकदीर, डेस्टिनी हैज बीन रिटन 50,000 years before the creation of the universe, तमाम कायनात के बनने से। अच्छा, मतलब पूरी कायनात जो है, अच्छा जरा सुनिए हमारे अहमद रजवी साहब। अच्छा, ये पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला बैठ के जो है लिख दिए। ये बहुत ही बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। वैसे तो इस तकदीर के ऊपर इंतहाई बेकार ये एक आइडिया है, और इसको आप कुरान से ना साबित कर सकते हैं और ना लगता है कि ऐसा हुआ है। कुछ भी कुरान से भला क्या साबित होता है यार? कुरान गोलमोल किताब है, कुछ भी बात साबित नहीं होती कुरान से, कुछ भी साबित नहीं होता। इनके कोई अकीदा साबित नहीं होता। ये पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं इलियास साहब। वैसे ये साहब बहुत बदतमीज हैं, आज बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा खासा सुना देते हैं। नहीं, असल में क्या है, आज बदतमीजी क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता है? इनकी इतनी पीठ खुजाई गई, इनकी इतनी पीठ फैलाई गई यार, जो है देख खबरदार जो है दांत। हाँ, बहुत ही दुलार रहे इनको, बार बार कह रहे हैं आप अच्छे आदमी हैं, एक बड़ा खतरनाक जो है कोई कुत्ता होता है तो उसकी पीठ सहला कर तो उन्हें जो है बस दबाव रहता, वरना तो वो काट लेगा। उसके बावजूद वो दांत दिखा के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है बेटा कुछ बताता भी, फिर भी धोरे हो जगह उनको। उन्होंने एक झूठ बोले पहले कि कुरान की आयत है, वो कौन सा है वो निफ्सुल ईमान। अच्छा, वो जो है अहमद रजवी साहब, ये जो है ये क्या नाम, ये वाइस चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के, फिरोज बख्श साहब वाइस चांसलर हैं, और ये वो हुब्बुल वतन मिनल ईमान को कुरान की आयत बता रहे हैं। इनका कुछ पता नहीं है, ये वाइस चांसलर हैं, इनको मुझे लगता है कुछ मालूमात नहीं है। अरे भाई क्या यार जो है, मैं क्या बताऊं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। अच्छा, इनके पास जो है एक जुमला इन्हों ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं जी। ये आप खत्म करें ये जो शो है, मैं फिर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप पहले ये शो खत्म करें। अच्छा चलें, ठीक है भाई। मेरी माँ को, मेरे वालिद को, किसी बुजुर्ग को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सैयदुल अंबिया को भी नहीं भूल सकते हम। तो इसी तरीके से भाग्य का विधाता रब के अलावा कोई और नहीं है। ट्रांसलेशन जो निकलते हैं भाग्य विधाता के या वंदे मातरम के, उसके एतबार से उसमें से शिर्क की बो आती है और हम उससे दूर रहना पसंद करते हैं। मुल्क के लिए मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूं, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सऊदी अरब में मक्का मदीना से ज्यादा मुकद्दस शहर हमारे लिए कोई नहीं है। उसके अंदर अगर नारा लगाने की बात, मैं जिद्दा में हूँ, मक्का के करीब में, मैं मक्का में जाके नारा लगा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा इस बात का। और तवाफ करते वक्त रमजान में मैंने भारत के लिए और दुनिया के लिए अमन सलामती, शांति, उन्नति और तरक्की के लिए दुआ की, अल्लाह जानता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि शिर्क के अंदर जहां पर मसला रहेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक ही अल्लाह की इबादत, दूसरा मैं खास तौर पर भारत के लिए दुआ क्या की वो नहीं बोला उसने। वो दुआ ये की उन्होंने कि सारे हिंदू इस्लाम कबूल कर ले, सारे हिंदू इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमानों की तरक्की हो, मुसलमानों की उन्नति हो, और जाहिर बात है इस्लाम है भारत में जो है गलबा हासिल हो जाए, भारत में इस्लाम का गलबा हो जाए। अच्छा, ये बात जो है यानी उलमा अपनी हर निजी महफिल में कहते हैं कि ये हिंदुस्तान को इस्लामी हिंदुस्तान बनाना है, तो उनका मकसद है, उनकी जिंदगी का मकसद है। हज के मौके पे आप देखें, हज के मौके पे दुआ होती है, इमाम काबा दुआ करते, उसमें ये बात आती है कि इस्लाम का गलबा हो हर जगह पे, इस्लाम का गलबा हो हर जगह इस्लाम गालिब आ जाए। जो कुरान की आयतें भी यही कह रही है ना, जाहिर बात है वो जो है वही कहेंगे। तो अब ये कहना है कि भारत की उन्नति कैसे, भाई इस्लाम की उन्नति हो, इस्लाम का गलबा हो, इस्लाम छा जाए। असल आपकी दुआ ये होती है। भारत अगर देखें भारत का अगर गलबा होगा तो इस्लाम जो है नीचे हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं अहमद रजवी साहब? देखें, भारत का गलबा होने का मतलब ये है कि इस्लाम मगलूब है, इस्लाम मगलूब है ना। तो ये दुआ नहीं कर सकते। इनकी दुआ ये होती है कि जो है यानी कुफ्र और शिर्क, भारत में क्या है, कुफ्र और शिर्क का गलबा है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, यानी सेकुलर स्टेट का किसी मतलब कुरान की किसी आयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकुलर स्टेट होना ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। जी आगे चलिए भाई। पर ये बात का ऐलान करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि
जान माल इज्जत और आबरू बचाने के लिए और बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेहतरीन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सिक्योरिटी के लिए और प्रॉस्पेरस और सिक्योर शांति उन्नति के लिए जो लाइफ सऊदी अरब में रब के हुक्म वाली चल रही है, उसको एक बार कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, बाइबल और गुरु ग्रंथ से सिमिलैरिटीज निकालकर भारत में लाएंगे, इंशाअल्लाह भारत विश्व गुरु रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह वाह, कोई नहीं चलिए, रोक सकता। और हम इंशाअल्लाह हम के- इस्लाम को गालिब करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। भारत में हम इस्लाम को जो है लागू करेंगे, ये इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कह रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं भाई, इस्लाम जो है गालिब आएगा, इस्लाम छाना है भारत में, ये तो इनका मकसद है।